हाँ स्टार्ट करिए। Okay, sir. So, good evening to all of you. So, today is our concluding session, and the topic is considerations for statutory audit for financial year 23-24. Let me share the screen, and I will discuss all the things in detail. So, Vijay ji, मेरी screen visible हो गई होगी अब? हाँ विजिबल है। Okay. So, in today's session, it will not be purely theory. So, I will be asking some questions to you as case studies, and then you have to give your answers as per your own understanding. I'm assuming that you already carried out your audit for the financial year 22-23. So, keeping those elements which you experienced last year, let us discuss what happened and what should have happened and what we have to be careful about in the current 2324. Here comes question number 1 for you. This question is based upon company's accounting standard rules 2021. तो अभी आज का जो डिस्कशन होगा उसमें क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस होंगी. And most of these questions are taken from practical world, and these are the common kind of mistakes which people must have incurred or may be incurring in times to come. So first question is before you. RST Private Limited is the company. It is having 25 employees and payment of gratuity act is applicable. No actuarial valuation was made for such employment benefit. The company and its auditor are of the view that since number of employees are less than 50, accounting standard 15 on employee benefits need not be complied. Why they said so? Because the company and the auditor are of the view that there is exemption from such compliance due to employees being less than 50. So I put this question before the audience. I need to know your answers. तो कभी क्या हुआ, कंपनी कहती है कि मेरे पास पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल है, बट जो मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो 50 से नीचे हैं. क्योंकि एम्प्लॉइज 50 से नीचे हैं तो इस वजह से AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स का एक्चुअल वैल्यूएशन कराने की जरूरत नहीं है. So how far you believe that this company and then its auditor are correct? Any view from your side? So you know what is happening in real world. Most of the chartered accountants and even finance professionals for that matter, they are having a misconception. उनको एक misconception, एक myth है. Now what is the misconception or the wrong understanding? काफी लोगों का मानना है कि अगर कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 50 से नीचे हैं तो एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं कराना. You can take note of my words. There is no such kind of exemption given to any company. आपकी कंपनी में अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 10 से ज्यादा है और आप पर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट लगता है तो उस केस के अंदर आपको एक्चुअल वैल्यूएशन कराना होगा. एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, काफी लोगों का यही मानना है कि अगर मेरी कंपनी स्मॉल कंपनी है तो उस केस के अंदर एक्चुअल वैल्यूएशन एप्लीकेबल नहीं है. प्लीज टेक अ नोट. Actual valuation is required to be done by all the companies. Big or small doesn't matter. Big or small doesn't matter. तो सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, irrespective of whether your company is a big company or a small company, and irrespective of whether your number of employees are less than 50 or more than 50, actual valuation is required if your company is providing post employment benefits. Like one example is payment of gratuity act, then there could be leave encashment and so on. यहाँ पर आपको क्वेश्चन आता पूछिए. कोई मुझे बता सकता है कि 50 एम्प्लॉइज का जो एक थ्रेशोल्ड आ रहा है ये आया कहां से? What you need to understand, in case of non-corporate entities, like partnership firms, proprietorship firms, societies, LLPs, the accounting standards issued by Institute of Chartered Accountants of India are applicable. And the accounting standards which are issued by Institute of Chartered Accountants of India, they do state if number of employees are less than 50, then actual valuation is not required. So that is the case which we need to understand. कंपनी के ऊपर ICAI के एस नहीं लगते, कंपनी के ऊपर एस लगते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई किए हैं, एंड दोज एस आर नोटिफाइड बाय द नेम ऑफ कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021. So I believe the point is clear to each one of you. If I give the answer moves like this. No such exemption is there under AS15. Actual valuation is required, and auditors have to document the effects and quantification in the audit file by virtue of SA 230. Plus, they also need to obtain MRL, that is management representation letter under SA 580,
And if the actual valuation is not carried out, then we have to issue qualified report as per SS 705. ये तीनों ही जो स्टैंडर्ड्स हैं हम ऑलरेडी पिछले सेशंस में कर चुके हैं. So I believe this question is clear to each one of you. Should you have any query, I would be happy to help. In the chat box, there is no query, so I presume there is no query. Now let me move to the next leg of discussion. Just have this question for the people. The question is, do you have board resolution for being appointed as tax auditor? Let us take a situation to make the things more clear. Say the company is RST Private Limited and you are appointed as statutory auditor at the annual general meeting. You have filed ADT 1 for the same. Now, what happened? You are also carrying out the tax audit of RST Private Limited. However, the same was not discussed at the board meeting or annual general meeting. Normally, what happens when you are appointed as statutory auditor, the CFO or director finance of the company gives you a kind of a letter that please do carry out the tax audit also. And hence the question is there any requirement to have board resolution for appointment as tax auditor of the same company of which you are the statutory auditor? Is any answer? तो अगर आप जिस कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं उसी कंपनी का टैक्स ऑडिट भी कर रहे हैं तो क्या मुझे बीइंग अ टैक्स ऑडिटर कोई बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए? इफ द आंसर इज नो, द रीजन. इफ द आंसर इज यस, देन द रीजन. I got two answers in the chat box, but the answer is incomplete. The answer is yes. But what is the reason? कहीं लिखा है कंपनीज एक्ट में या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि आपको बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा? तो चंद्र मोहन जी, अनिल जी, आपने आंसर दिया यस. तो एनी व्यू why this board resolution is required? Is there any literature available in the law? So primarily, what is happening in real world, it's a customary practice going on. शुरू से लोग ये मानते रहे कि अगर मुझे अपॉइंट किया गया स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो मैं टैक्स ऑडिट करूंगा ही करूंगा. These are the days which were there in Companies Act 56. But right from 1st April 2014, please mark this date. Right from 1st April 2014, the things are not the same as they were in the old act. अनिल जी, अपॉइंटमेंट बेसिस भी इसका आंसर ठीक नहीं है. So try to understand the board resolution is required by virtue of section number 144 of Companies Act. अब जैसे ही सामने सेक्शन 144 आता है तो हमारे माइंड में आता है कि there are certain services which cannot be rendered by statutory auditor. But the fact is, if you read section 144 properly, how section 144 is written, just see the words I'm showing on the screen. Initial words of section 144 are, an auditor appointed under this act, this means the Companies Act, shall provide to the company only such other services as are approved by the board of directors or the audit committee, as the case may be, but which shall not include any of the following services. तो अभी हुआ क्या है, we people always have concentrated on the excluded services. We have not emphasized the initial words of section 144. Section 144 क्या कह रहा है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपकी कंपनी का केवल वही सर्विसेज एडिशनली रेंडर कर सकता है जो कि बोर्ड ने या ऑडिट कमेटी ने अप्रूव किया हो. लेकिन जो एडिशनल सर्विसेज हैं उसमें नीचे जो लिस्ट दे रखी है वो सर्विसेज शामिल नहीं होंगी. What does it signify? It signifies that if you are appointed as statutory auditor of a company and you're also considered to be appointed as tax auditor of the same company, then you must have the board resolution being passed under section 144 of Companies Act. So what you need to understand, आपको अगर आज किसी कंपनी का स्टैट ऑडिट करना है और आप उसका टैक्स ऑडिट भी करते हो तो प्लीज चेक कर लीजिए कि क्या आपके पास सेक्शन 144 का बोर्ड रेजोल्यूशन है कि नहीं है. The good thing, fortunately, is this board resolution is not required to be filed anywhere. So this board resolution must be there in your audit file as a matter of documentation. कल को कोई रेगुलेटर मांगता है तो आपके पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स तो हों. So if I resolve this query, the query will be resolved in this manner. Whether board resolution is required, answer is yes. And what is the reason behind the reason is section 144 provisions of the Companies Act. I believe this point is also clear to each one of you. If you have any query on this forefront, please do ask me. But yes, before you ask the query, let me state one thing very categorically. In my experience till date, I have never come across any of the chartered accountant who are taking this board resolution. नॉर्मली ये कस्टमरी प्रैक्टिस चलती जा रही है कि अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा हूं तो मैं ही टैक्स ऑडिट भी करूंगा. So we have to come out of this customary wrong practice and we have to take the board resolution under section number 144 of Companies Act. तो मुझे लगता है अनिल जी शायद अब बात क्लियर हो गई होगी. चंद्रमोहन जी, and any other query from any other person?
Okay, so I presume there is no query. So learning here is that if you are carrying out the tax audit of the same company of which you are the statutory auditor, you have to obtain section 140 for resolution for your appointment as tax auditor. Now, let me make a small change in this question. Just see this question over here. मैं टाइप करता हूँ क्वेश्चन को, या बाद में देखते हैं इस क्वेश्चन को, अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. लेट मी डेफर द क्वेश्चन. एक क्वेश्चन दिमाग में है, मैं बाद में पूछूंगा सही समय पर. Now, other topic to discuss about the statutory audit for year 2324 is inconsistency in notes and board report. कभी आपने ये एनालाइज किया है कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टर रिपोर्ट में है, दोनों में डिफरेंस हो सकता है? व्हाट टू डू? हमने इसका ऐसे भी किया था, बट आज थोड़ा सा और प्रैक्टिकली देखते हैं इसको. The question is कि if there is a difference between the audited financial statements and the audit report, then what to do? Let us understand what I am trying to convey. See what happens. अगर हम बोर्ड रिपोर्ट की बात करें, बोर्ड रिपोर्ट के लिए हमारे पास सेक्शन आता है 134. So I am touching section number 134, which is relevant for now only 2 clauses. If you see the first bullet point, what it says, board report shall state the following. Number 1, the amounts, if any, which it proposes to carry to any reserves. And number B, the amount, if any, which it recommends should be paid by way of dividend. तो क्या कहा गया? Section number 134 subsection 3 clause J and section number 134 subsection 3 clause K. ये दोनों क्या बात कहते हैं? ये कहते हैं बोर्ड रिपोर्ट में डायरेक्टर्स ये बताएंगे कि क्या उन्होंने इस साल में, इस वर्ष में रिजर्व्स में कोई प्रॉफिट ट्रांसफर करने की बात सोची है, और दूसरा, क्या इस वर्ष में डायरेक्टर्स ने डिविडेंड रिकमेंड करने की बात सोची है. ये वाली बात आपको बोर्ड रिपोर्ट में बतानी है. But now what is happening in real world, what I observed, most of the chartered accountants, most of the finance professionals, they are writing good things in the board report that are required by section 134. But unfortunately, or maybe by mistake, the requirements of schedule 3 are not complied with. Schedule 3 क्या कहता है? Schedule 3 requires the disclosure in notes for the following. If you see the second bullet point, अगर आप देखोगे schedule 3 की बातों को, they are more or less similar to what board report is requiring. So schedule 3 says that in the notes to accounts you have to disclose the following. Number 1, balance in the statement of P&L, disclosing allocations and appropriations such as dividend, bonus shares, and transfer to or from reserves. And number 2, the amount of dividends proposed to be distributed to equity and preference shareholders for the period. तो अगर आप देखें, बोर्ड रिपोर्ट में डायरेक्टर्स बता रहे हैं रिजर्व्स में एप्रोप्रिएशन के बारे में और प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में. इसी का डिस्क्लोजर कंपनी लॉ बाय वर्चू शेड्यूल 3 चाहता है कि आप करें नोट्स अकाउंट्स में. अब रियल वर्ल्ड में क्या देखने को मिलता है कि शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर नहीं होता. शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर नहीं होता, लेकिन बोर्ड में डिविडेंड और एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स की बातें लिखी होती हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से द कंटेंट ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट is mismatching with the content of the audited financial statements. I repeat, because of the reasons visible on the screen, the content of the board report is mismatching with the content of the audited financial statements. And this word mismatching, which I am saying, technically is called as inconsistency in notes and board report. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, अगर ये वाली इनकंसिस्टेंसी है तो ऑडिटर इसको अपनी रिपोर्ट में कैसे डील करे? See, with all practical reasons, नॉर्मली होता क्या है, या नॉर्मली क्या होता है कि बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एक ही दिन पे साइन होता है. बट इफ एक्चुअली सिचुएशन इज लाइक दैट कि ऑडिट रिपोर्ट पहले साइन होता है, बोर्ड रिपोर्ट बाद में बनता है. That means if for all legal and practical reasons, on the date of signing of audit report, the board report may not be available to the auditor. So what to do? So you can take a note of the standard SA number 720, SA 720. SA 720 का illustration number 4 हमारे काम का है. तो क्या करना है आपको? अपने ऑडिट रिपोर्ट में आपको एक हेडिंग बनाना है, सेपरेट अदर इंफॉर्मेशन. आप अदर इंफॉर्मेशन नाम रख दीजिए, या एक नाम और रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट दे रहा हूं. इसमें क्या करना है, आप SA 720 को डाउनलोड कीजिएगा और इलस्ट्रेशन नंबर 4 को कॉपी कर लीजिएगा, एंड देन यू कैन चेंज द लैंग्वेज अकॉर्डिंगली. आई एम टचिंग ऑन द रेड बॉक्स व्हिच इज रिलेवेंट फॉर अस. तो क्या करेंगे आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में लैंग्वेज लिखेंगे. For example, if you see the first paragraph, which is relevant now, the company's board of directors is responsible for other information.
The other information comprises the information included in X report. This X report means the director's report. अब मैं दोबारा से पढ़ता हूँ इसको. The company's board of directors is responsible for other information. The other information comprises the information included in director's report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The director's report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report. I emphasize this sentence. The director's report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report. बाकी जो लैंग्वेज है वो तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वो आप ऐसे 720 से एज इट इज ले सकते हैं. बट यहाँ पर हमें क्या कन्वे करना है मैसेज रीडर्स को कि मेरे ऑडिटेड रिजल्ट्स के अंदर और डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर जो इनकंसिस्टेंसी हो सकती है वो मैं आज नहीं बता सकता, क्योंकि जो डायरेक्टर रिपोर्ट है वो मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद आ सकती है. एज ऑन डेट आई डोंट हैव द डायरेक्टर रिपोर्ट, सो आई कैन नॉट कमेंट अपॉन द इनकंसिस्टेंसी. तो इन योर क्लाइंट केस, क्लाइंट आपका छोटा हो या बड़ा हो, बिग क्लाइंट हो, स्मॉल कंपनी हो, डजंट मैटर, एसएस 720 की ये रिक्वायरमेंट सभी कंपनी क्लाइंट्स पर एप्लीकेबल है एंड अकॉर्डिंग यू हैव टू फॉलो. तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर हो तो मुझसे पूछिए. मैं स्टैंडर्ड नंबर फिर से बोल देता हूँ. स्टैंडर्ड नंबर है SA720. आप ICI.org से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. So I believe this question is also clear to each one of you. If you have any query, I would be happy to answer. There's a question by Sirish ji. If there is any inconsistency in the last year's X report, then what should be done? In that very case, Shirish ji, if you remember, हमने एक स्टैंडर्ड किया था SA710 कि अगर लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट इनकंसिस्टेंसी में आ जाए तो क्या करें. तो वो इनकंसिस्टेंसी आप करंट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में बता देंगे, बट करंट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में वो इनकंसिस्टेंसी तभी बताएंगे इफ दिस इनकंसिस्टेंसी इज आल्सो इंपैक्टिंग द करंट ईयर फाइनेंशियल्स. If it is not impacting, then there is no need to disclose. Simply keep it in your working paper file. No. Any other question? चलिए आगे बढ़ते हैं. एक नफरा का ऑर्डर आया था अप्रैल 2023 में. वो नफरा का ऑर्डर मैं आपके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ. दिस नफरा ऑर्डर डेल्ट विद बोर्ड रेजोल्यूशन अप्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इट्स नॉट अ केस स्टडी, इट इज अ काइंड ऑफ वार्निंग. The NAFRA order dated 12th April 2023, but it stated, as per section 134 subsection 1 of the Companies Act, approval of financial statements by the board and its signing by the persons authorized by the board are prerequisites before an auditor makes a report on such approved and signed financial statements. So now what NAFRA ordered? NAFRA ordered that the auditor shall have to obtain a certified copy of the board resolution approving the financial statements and authorizing the directors to sign the financial statements and should have kept the same in the audit file before its assembly. तो अभी क्या करना है आपको, वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. क्या करना है, आप जिस कंपनी क्लाइंट का ऑडिट करते हैं उस कंपनी क्लाइंट का ऑडिट करने से पहले आपको बोर्ड रेजोल्यूशन जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव किया है उसका सर्टिफाइड कॉपी अपने ऑडिट फाइल में रखना है. अगर मैं दोबारा से पढ़ूं पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या लिख रहा है आपका? द ऑडिटर शैल हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन अप्रूविंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and authorizing the directors to sign the financial statements and should have kept the same in the audit file before its assembly. So you have to be very careful about this very amendment kind of thing or update kind of thing, whatever name called. But normally देखा गया है कि जो financials approve होते हैं उसका board resolution auditors के पास नहीं होता है. But I believe from this very NAFRA order, it is now crystal clear that auditors have to comply this very requirement. यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपको तो पूछ सकते हैं आप. Any query? Just a second. Now let us move forward if there is no query. A serious question and please reply me back. थोड़ा सा सोच समझ के देखिएगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए. What is your thinking and thought process about this question? So I read this question for you. The company is RST Private Limited and this company is into CIRP. CIRP stands for Corporate Insolvency Resolution Process. So RST Private Limited is under CIRP. Now Mr. X is appointed as insolvency professional for RST Private Limited. Mr. R, Mr. S and Mr. T, who were the directors of RST Private Limited, now are all suspended directors. But the question is,
whether the financial statements of RST Private Limited needs to be signed by such suspended directors or not. ये काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रॉब्लम है ये वाली कि जो डायरेक्टर सस्पेंड हो चुके हैं, क्या उन लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साइन करना है कि नहीं करना है. I got one answer from Anil ji. Answer is yes. Okay. Any other answer? But Anil ji, question है मेरा. I'm not saying whether your answer is right or wrong. I'm not commenting whether answer is right or wrong. But I have a counter question. Counter question is, when we say directors are suspended, then what could be the reason that they have to sign? If you say answer is yes. I got one answer from Surendra Sangvi ji. No. Okay. So by seeing these two answers as yes or no, it appears that still there is a kind of a dilemma amongst the professional fraternity. So please understand when we say directors are suspended, they are suspended from their powers, not from the duties. I repeat, when we say under CIRP, directors are suspended, so what we need to understand, the directors are suspended from their powers, they're powerless, but they are not dutyless. So duty still is there. And this very ideology was upheld by National Company Law Appellate Tribunal in CLC Industries case. So what happened in CLC Industries case, NCLAT held that the directors who have been suspended in the course of CIRP, they also need to sign the financial statements. So please take a note of this thing. If you are the auditor of any such company which is under CIRP, please ensure that not only the insolvency professional, but also the suspended directors are signing the financial statements on account of the judgment given in CLC Industries case. So whenever time permits you, please download this case from Google, and you have to go through this case and the ratio decided thereon, so that you have to have a calculative idea. So I believe this point is clear to each one of you. Simple learning is, the company goes into CIRP, the directors are powerless but not dutyless, and hence they are also duty bound to sign the financial statement. So I believe this point is also clear to each one of you. Any query? Let me see in the chat box. Okay, no query. Next question. So this question is about a newly incorporated company and subscription money. This question will take around 3-4 minutes to discuss. Let me give the question before the house. There's a question by Anil ji. If the director do not sign, then what? If directors are not signing, then what you will do in the other matter paragraph? In the other matter paragraph, you will disclose that the directors have not signed and the reasons, whatever the reasons would be. तो अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर आप वो सब कुछ बता देंगे. इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, जब हमने चैप्टर किया था ऑडिट रिपोर्ट का, तो मैंने बताया था कि अदर मैटर पैराग्राफ इज अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर्स. तो अगर डायरेक्टर साइन नहीं करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ लिमिटेशन ऑन स्कोप, and this limitation of scope which is casting a shadow on your responsibilities need to be given in other matter paragraph. बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा, उससे आप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेंगे कि डायरेक्टर्स ने साइन क्यों नहीं किया. Am I clear, Anil ji? Okay, so let us have this question, and this will take 3-4 minutes to discuss. A very comprehensive question, and I believe this question will have some brainstorming discussion. So just a moment before you say anything, let me delete certain things. Yes, so this is the question over here. The company is RST Limited. It was incorporated on 28th December 2023. The subscribers undertook to bring in rupees 5 lakhs towards the subscription money in terms of Section 10 Capital A of Companies Act 2013. The amount was not received. The amount was not received as at 31st March 2024. Now the question is how the financial statements should reflect this rupees 5 lakhs, if at all it need to be reflected for the financial year 23-24. There is one more question over here. What is the auditor's responsibility if the amount was still not received and the audit report was signed on 18th June 2024? And there is other question. The amount was still not received and the audit report was signed on 18th July 2024. Before you give any answer, let me ask one hidden question over here. If you see, the company was incorporated on 28th of December 2023.
So please tell me, if the company is incorporated on 28 December 2023, as per your wisdom, what will be the financial year ending date for RST Limited? 31st March 24 or 31st March 25? आपके अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन में कंपनी के लिए, जो नई कंपनी अभी नई इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसके लिए जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, कौन सी डेट पे खत्म होगा? 31st March 23 पर, सॉरी 24 पर, या 31st March 25 पर? लेट मी सी द चैट बॉक्स. In fact, I got both the answers. Chandramohan ji is saying 24, Shirish ji is saying 25, and other two people are saying 24. तो पहले तो हम ये समझें कि the financial year will be ending on 31st March 24. So see what the law says. If you refer the law, section number 2, clause 41 is there, which defines financial year. What it says, if a company is incorporated on or after 1st January, then the financial year will be ending on 31st March of the next following year. तो अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है, तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो अगली नेक्स्ट 31st मार्च को खत्म होगा. अब हमारे पास जो डेट है यहाँ पर 28 दिसंबर है. नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो आएगा वो 24 ही आएगा. तो 31st March 2024 इज द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग डेट. नाउ अभी आपके लिए क्वेश्चन आता है. एक मिनट के लिए आप भूल जाइए कि आप ऑडिटर हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. एक नॉर्मल अकाउंटिंग पर्सनालिटी की तरफ से सोचिए, जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 12th. आप मुझे ये बताइए, एंड विदाउट सर्चिंग ऑन गूगल मुझे ये बताइए, क्वेश्चन कहता है कि सब्सक्राइबर्स ने प्रॉमिस किया कि 5 लाख रुपीस वो कंपनी में लेकर आएंगे, एंड दिस प्रॉमिस वाज मेड बिकॉज ऑफ सेक्शन 10A. नाउ लेट मी रिकॉल व्हाट इज सेक्शन 10A. सेक्शन 10A कहता है that subscribers need to bring in subscription money within 180 days of company's incorporation. कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 180 डेज के अंदर अंदर सब्सक्राइबर्स को अपना सब्सक्रिप्शन का पैसा कंपनी में लेकर आना है. अभी अभी हमने सोचा है, समझा कि 31st March 2024 इज द फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग डेट. अभी आप मुझे ये बताइए कि 31st March 2024 पर क्या ₹5 लाख बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे? या थोड़ा सा और इसको डीप डाइव करते हैं. ये प्रॉमिस किया गया 28 दिसंबर 2023 को. तो 28 दिसंबर 2023 को क्या 5 लाख रुपए के लिए कोई जर्नल एंट्री बुक्स में पास की जाएगी? जर्नल एंट्री अगर बुक्स में पास हो जाएगी तो फिर बैलेंस शीट में भी आ जाएगा. तो आई मस्ट आस्क यू दिस क्वेश्चन रेदर, what will be at all, if at all, journal entry for ₹5 lakhs given on the screen? Any answer? नॉर्मली क्या देखने को मिलता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, कि जो 5 लाख रुपए की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन मनी की, लोग इसको बैलेंस शीट में दिखाते ही नहीं है. No company, or I should not say no company, maximum companies which I experience, they are not passing any journal entry for the same. They are simply disclosing in the notes to accounts that 5 lakh rupees was promised by subscribers. Disclosure is one thing, accounting of debit credit is another thing. तो क्या 5 लाख रुपए का डेबिट क्रेडिट का एंट्री होगा? आंसर इज यस. एंड द एंट्री विल बी सब्सक्रिप्शन मनी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट ₹5 lakhs to paid up share capital account. Please take a note of a section number 2, clause 64. Section number 2, clause 64 states that the amount which will be brought in by subscribers will be considered as paid up capital. तो एंट्री क्या हो जाएगा हमारा? एंट्री हो जाएगा सब्सक्रिप्शन मनी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पेड अप कैपिटल अकाउंट. Subscription money receivable account will be shown as other current assets below the heading current assets, and paid up capital will be shown on the share capital side. I believe this point is clear to each one of you. तो अगर आप स्कीम ऑफ एंट्री देखिए ना, तो स्कीम ऑफ एंट्री ये वाला आएगा. जस्ट अ मोमेंट. Subscription money receivable account debit ₹5 lakhs because of section 10A other current assets to paid up capital account 5 lakh because of section number 2 clause 64 share capital. अभी क्या हुआ कि 31st मार्च को आपने ये वाला अमाउंट तो दिखा दिया. अब आते हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पर. Now what they are saying in question number A, the amount was still not received and audit report was signed on 18th of June 2024. अमाउंट अभी मिला नहीं है और ऑडिट रिपोर्ट आपने साइन किया 18 जून 24 को. अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 28 दिसंबर को, तो जो 180 डेज हैं दे विल बी इलैप्सिंग समवेयर नियर अबाउट 26 जून. तो अभी 26 जून तो अभी आया नहीं है ना. 18 जून को आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ
18 जून को 180 days are yet to expire. So there is no contravention as on date. As on date means 18 जून. तो अभी समझ में एक क्वेश्चन आता है कि 18 जून को अगर आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हो और आपको ये पता है कि 180 दिन कंप्लीट नहीं हुए हैं, दे आर नियर अबाउट टू बी कंप्लीटेड, तो कौन सा ऑडिट रिपोर्ट इशू करना चाहिए? ऐसे दूसरा क्वेश्चन इसमें आ जाता है, क्वेश्चन नंबर बी, द अमाउंट वाज स्टिल नॉट रिसीव्ड एंड द ऑडिट रिपोर्ट वाज साइन ऑन 18th जुलाई 24। पैसा मिला नहीं है, 18 जुलाई का ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हो, तो अभी तो 26 जून भी निकल चुका है, 180 दिन कंप्लीट हो गया और पैसा अभी तक आया नहीं है, और 18 जुलाई जो 26 जून के बाद का डेट है, तो उस दिन आप क्या रिपोर्ट इशू करेंगे? यस, एनी आंसर्स? So what kind of report you will issue in case number A and what kind of report you will issue in case number B? Yes, any answer? अनिल जी, नोट्स में तो नहीं जाएगा ना, अभी हम नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में कैसे रिपोर्टिंग करें? तो इन बी यू आर सेइंग क्वालिफाई। ठीक है, बी में कहते हैं आप क्वालिफाई कर दो क्योंकि सेक्शन 10 ए कॉन्ट्रावीन हो गया। एनी अदर थिंग इन एडिशन टू क्वालिफिकेशन? आई एम्फेसाइज माय वर्ड्स, इन एडिशन टू क्वालिफिकेशन। क्या कहीं पर आपको लगता है कि गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग करनी होगी इसमें? whether we need to report about going concern also? So please take a note. We do have section number 248, subsection 1 clause D. Section 248 subsection 1 clause D कहता है कि अगर कंपनी सेक्शन 10A कॉन्ट्रावीन करती है तो उस केस में आरओसी को पावर है कि शो कॉज नोटिस इशू करके कंपनी का नाम अपने रिकॉर्ड से स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। सो आई रिपीट, सेक्शन 248 1D says if section 10 is contravened then ROC has the powers to strike off the name of the company। इसका मतलब क्या हुआ? 18th of July को company is yet to receive ROC show cause notice for striking off it, but the triggering point already has occurred for striking off. That means as on 18th of July there is a material uncertainty about going concern, there is a material uncertainty about going concern, तो अब साथ में गोइंग कंसर्न का रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा। जहां तक सवाल है क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर ए के अंदर देयर इज नो कॉन्ट्रावेंशन बट द मैटर इज इंपॉर्टेंट टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इशू करेंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ रिपोर्ट। इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट अर्लियर क्लासेस आई टोल्ड यू एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज इशूड व्हेन मैटर इज सिग्निफिकेंट बट डू नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन। So in that very case, what you will be doing that you have to give emphasis in A and qualification plus going concern in number B. I got one question from Chandra Mohan ji. Kindly consider one more question. Received before 31st March, but after 180 days. So in this very case, if you have received before 31st March, but after 180 days, still 248 1D will be applicable. If 248 1D के अंदर RC के powers तो हैं, so same thing you will be reporting that the company may go into litigation. So in that very case, you will be qualifying because पैसा तो आपको 180 days के बाद ही आया चंद्रमोहन जी, तो यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन आएगा और गोइंग कंसर्न के ऊपर भी बात लगाई जा सकती है। बट नाउ लेट मी ऐड वन मोर थिंग कि आप वाले क्वेश्चन में कंपनी वेंट फॉर कंपाउंडिंग आल्सो। इफ द कंपनी विल गो इनटू कंपाउंडिंग सो दैट मींस देयर इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर अबाउट गोइंग कंसर्न, तो उस केस में आप क्वालिफिकेशन ना कर कर आप एम्फेसिस ऑफ मैटर में ले जाएंगे। एम आई क्लियर चंद्रमोहन जी? तो जो बातें मैंने की एक बार मैं इसको यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जस्ट गिव अ मोमेंट। मैंने कुछ डिलीट किया था, उसको ठीक कर लेते हैं। सी हियर, so this is the solution. First case में you have to issue emphasis of matter report and second case में qualification because of contravention of section 10A and then going concern because of contravention of section 10A read with section 248 1D। going concern के लिए जो हमारे पास essay आता है वो आता है essay 570, qualification के लिए जो हमारे पास essay आता है वो आता है essay number 705। मैं भी आपको बता रहा था कि एक क्वेश्चन बाद में कंसिडर करेंगे, इसमें कोई डाउट है तो बताइए बिकॉज दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? तो आप में से जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी कोई नई कंपनी ऑडिट लिया है जो कि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, तो वहां पर ये बात आपको कंसीडर करनी होगी। इफ इट इज रिसीव्ड लेटर ना अनिल जी, कॉन्ट्रावेंशन स्टिल इज देयर।
बाद में पैसा रिसीव हो जाता है तो आप ये नहीं कह सकते ना कि 180 दिन का कॉन्ट्रावेंशन नहीं हुआ। कॉन्ट्रावेंशन स्टिल इज देयर, ओनली थिंग इज बिकॉज पैसा आ चुका है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग केस होगा आरओसी के पास जाकर डिफेंड करने का। तो आपको रिपोर्टिंग तो करना ही पड़ेगा गोइंग कंसर्न का, ज्यादा हो तो आप एम्फेसिस कर दीजिए कि मनी इज रिसीव्ड एंड द मैटर इज प्रोन टू लिटिगेशन, बट कॉन्ट्रावेंशन स्टिल इज देयर। चंद्रमोहन जी को पिक लेना है एंट्रीज का, ओके जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शो दी एंट्रीज। ये एंट्रीज हैं चंद्रमोहन जी। ओके, नाउ लेट मी शो यू समथिंग, जस्ट अ मोमेंट, मुझे क्वेश्चन सर्च करना है। यस, चलिए बाद में करते हैं इस क्वेश्चन को, अभी थोड़ा सा और टाइम लेते हैं। So I believe this question which I discussed is clear to each one of you regarding newly incorporated company। आपके पास जब पीपीटी ये वाला आएगा तो उसमें सोल्यूशन लिखा होगा, सारा थ्योरी लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर। So when you will get the PPT, theory will be there. Now let us discuss a burning issue. The burning issue is the applicability of Caro vis-a-vis small company. So let us invest some 5-10 minutes on this very topic also. So first of all, before we discuss small company issue, let us understand how this issue started. So what Caro says, Caro 2020, Caro stands for Companies Audit Report Order. What it says that Caro is not applicable to private companies. So when I say Caro is not applicable, that does mean if Caro is not applicable upon a company, then the auditors of that very company need not report upon 21 additional points. You must be knowing that Caro requires reporting upon 21 additional matters. So those 21 additional matters need not be reported if Caro is not applicable. So let us understand when Caro is not applicable to private companies so that we can also understand small companies. Now what is written in Caro? It says that CAR is not applicable to private company if it is not a subsidiary or a holding of public company and its paid up capital plus reserves and surplus are not exceeding rupees 1 crore as on balance sheet date, and its total borrowings from banks and financial institutions are not exceeding rupees 1 crore at any point of time. At any point of time is critical during the financial year, and its total revenue including revenue from discontinuing operations under schedule 3 इज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़। से ध्यान देना है कि रेवेन्यू का लिमिट 10 करोड़ से, बाकी लिमिट जो है 1 करोड़ का इज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एज पर द फाइनेंशियल स्टेट। तो अगर ये चारों शर्तें हम देखें, इफ ऑल दीज फोर कंडीशंस हैव द आंसर एज यस, if all these four conditions have answer as yes, then Caro will not be applicable to private company. Now Caro further says that I am also not applicable to small company. You must be aware the threshold of small company was revised on 15th of September 2022 and this yellow portion is revision. So as per section 2 clause 85 read with rule 21T of definition rules with effect from 15 September 2022, what is the new regime now? What they say, a company having paid up share capital of up to rupees 4 crores and turnover as per preceding year P&L, as per preceding year P&L. So turnover मुझे देखना है लास्ट ईयर का और पेड अप कैपिटल देखना है मुझे करंट ईयर का। तो टर्नओवर एज पर प्रीसीडिंग ईयर P&L इज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 40 करोड़। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, सीधी बट इज एंड, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम क्या कहेंगे कि कंपनी स्मॉल कंपनी है। बट देयर आर सम कैविएट्स आल्सो, द कैविएट्स आर फॉलोइंग डू नॉट क्वालिफाई स्मॉल कंपनी। तो नीचे लिखी गई चार कंपनीज को कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं कहा जाएगा। वन इज पब्लिक कंपनी, सेकंड इज होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी, थर्ड इज सेक्शन 8 कंपनी, एंड देन इज कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच इज गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट। तो एक बात समझ में यहाँ से आती है कि अगर स्मॉल कंपनी बनना है ना किसी को तो प्राइवेट कंपनी होना जरूरी है। ओनली अ प्राइवेट कंपनी कैन बिकम अ स्मॉल कंपनी, दैट इज द प्री कंडीशन, because they already have stated the public company can never qualify small company. So with this very theoretical background, जो theory अभी हमने बात की, इस theoretical background से आप बताइएगा कि आपके पास दो क्वेश्चन अभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज बिफोर यू। इस क्वेश्चन में बताइएगा कि क्या ईयर 2324 के लिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड पर कारो एप्लीकेबल है या नहीं, ये अजम्पशन लेते हुए कि इन द लास्ट ईयर 22-23 कारो वाज एप्लीकेबल ऑन XYZ प्राइवेट लिमिटेड। आपके पास दो क्वेश्चन मार्क्स हैं, प्लीज रिजॉल्व दीज क्वेश्चन मार्क्स। ये मुझे इन दोनों के मुझे आंसर चाहिए। करंट ईयर 23-24 के लिए क्या कारो एप्लीकेबल है कि नहीं एंड द रीजन फॉर द सेम।
Yes, any answers? आज रमेश जी नहीं है शायद। रमेश जी हैं आप, तो इफ पॉसिबल गिव द आंसर। रमेश जी कहते हैं नॉट एप्लीकेबल। ओके, रमेश जी आपने कहा नॉट एप्लीकेबल, रीजन क्या है नॉट एप्लीकेबल का? व्हाट इज द रीजन व्हाई कारो इज नॉट एप्लीकेबल? एंड अनिल जी कहते हैं कारो इज एप्लीकेबल, व्हाट इज द रीजन? ओके, चंद्रमोहन जी का भी आंसर है यस। ओके, शिरीष जी का भी आंसर आता है यस। ओके, चलिए अभी आप यस या नो कह रहे हैं, मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करता। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है अब। Just see the second question and please tell me now whether car is applicable or not. अभी आपके अकॉर्डिंगली कारो एप्लीकेबल है कि नहीं फॉर द ईयर 2324? लेट मी सी द चैट बॉक्स। अभी कोई आंसर नहीं आया मेरे पास। अनिल जी नो तो ठीक है, रीजन बताइए मुझे। चंद्रमोहन जी कहते हैं नो, स्मॉल कंपनी। ओके, चलिए रिजॉल्व करते हैं ऐसे। लेट मी गो बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सी हमेशा याद रखना है कि जो हमारे स्टेप्स होंगे कारों की एप्लीकेबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए, वो स्टेप नंबर वन होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक वेदर द कंपनी इज स्मॉल कंपनी और नॉट। अभी आप देखिए एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, और मुझे बताइए कि क्या एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ईयर 2324 में स्मॉल कंपनी है कि नहीं? प्राइवेट कंपनी है तो स्मॉल कंपनी बन सकता है, चेक करते हैं। शर्त क्या थी? फर्स्ट कंडीशन वाज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शैल हैव पेड अप शेयर कैपिटल विच शैल नॉट बी मोर देन रुपीज 4 करोड़। अभी कितना पेड अप कैपिटल है इसका? 48 lakhs। तो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। व्हाट वाज सेकंड कंडीशन? द टर्नओवर एज पर प्रीसीडिंग ईयर P&L, एज पर प्रीसीडिंग ईयर P&L शैल नॉट बी मोर देन 40 करोड़। अभी क्या हुआ? पिछले वर्ष का टर्नओवर 44 करोड़ है, तो दैट मींस एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। अब अगर एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी नहीं है तो हम क्या करेंगे? जो नॉर्मल कंडीशंस एप्लीकेबल है प्राइवेट कंपनी पर वो चेक करेंगे। लेट अस चेक द नॉर्मल कंडीशंस वन बाय वन। पहला शर्त क्या था? कि प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी का होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होना चाहिए। तो एक्स वाई जेड प्राइवेट तो स्टैंड अलोन कंपनी है, यहाँ तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं होल्डिंग सब्सिडरी का। तो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड। सेकंड कंडीशन क्या था? कि जो ये प्राइवेट कंपनी है, इसका पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस टोटल मिलाकर 1 करोड़ से ऊपर ना हो। ये कितना है? केवल 53 lakhs। तो दिस कंडीशन ऑल्सो फुलफिल्ड। थर्ड कंडीशन क्या था? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पूरे वर्ष में किसी भी समय पर जो उसका लोन हो, बोरोइंग हो, वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं हो। यहाँ कितना है? 3 करोड़। तो नाउ बोरोइंग इज मोर देन रुपीज 1 करोड़, सो व्हाट विल हैपन? कारो विल बिकम एप्लीकेबल। Even otherwise, let me assume the borrowing had been zero. Caro still had been applicable because the turnover or the total revenue is more than 10 crores. तो अभी क्या हुआ? यहाँ पर जो बोरोइंग है या टर्नओवर है, जो भी आप कंडीशन उठा लीजिए, दे आर मोर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट्स गिवन फॉर प्राइवेट कंपनीज, कारो विल बी एप्लीकेबल। नाउ अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से चेक करते हैं कि क्या एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड स्मॉल कंपनी है कि नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? कि प्राइवेट कंपनी का करंट ईयर का पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ऊपर ना हो। यहाँ पर 48 lakhs है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड। सेकंड कंडीशन क्या था? कि प्राइवेट कंपनी का लास्ट ईयर का टर्नओवर 40 करोड़ से ऊपर ना हो। यहाँ कितना है? 34 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ? करंट ईयर में एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड क्या हो गया? स्मॉल कंपनी हो गया। तो वंस अ कंपनी बिकम स्मॉल कंपनी, कारो इज नॉट एप्लीकेबल। बट हियर कम्स द न्यू चैलेंज। द न्यू चैलेंज इज देयर कुड बी अ डिबेटेबल इशू। The debatable issue is, shall I say Caro is not applicable to XYZ Private Limited because it is a small company, or shall I say Caro is applicable on XYZ Private Limited because it is a private limited company whose borrowing is more than rupees 1 crore or total revenue is more than rupees 10 crores as the case may be. क्या मैं ये कहूं कि XYZ प्राइवेट पर कारो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये स्मॉल कंपनी है, या मैं ये कहूं कि एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर कारो एप्लीकेबल है क्योंकि इसका बोरोइंग 1 करोड़ से ऊपर है या इसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है? व्हाट इज द करेक्ट सिनेरियो?
स्मॉल कंपनी वाला जो रूल है वो प्रिवेल करेगा, या नॉर्मल जो रूल है वो प्रिवेल करेंगे? एनी आइडिया? तो अनिल जी कहते हैं स्मॉल कंपनी विल प्रिवेल। अनिल जी, यूर करेक्ट, बट वेदर दिस वेरी सिनेरियो इज रिटन समवेयर, कहीं पर इसके बारे में कुछ लिखा गया है? So I would recommend each one of you to take a note. Para number 12. Para number 12 of Guidance Note on CARA 2020 issued by Institute of Chartered Accountants of India. I repeat the para number, paragraph number 12. पैरा नंबर 12 ये बात साफ साफ बोलता है कि अगर आपकी प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी बन जाती है तो उस पर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, और प्राइवेट कंपनी के लिए जो नॉर्मल जनरल कंडीशंस हैं वो आपको चेक नहीं करनी है। तो वंस अ कंपनी क्वालिफाइड स्मॉल कंपनी, you need not do any further elements. CARA will not be applicable. Where it is written in para number 12 of Guidance Note on CARA 2020 issued by ICAI. और एक बात मैं और साफ कर दूं, अगर आपके कंपनी क्लाइंट पर कारो एप्लीकेबल नहीं है तो आप ऑडिट रिपोर्ट में पैराग्राफ लिखेंगे कि वी रिपोर्ट दैट कारो 2020 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ इट बीइंग अ स्मॉल कंपनी। तो आई बिलीव जो डाउट रहता है कारो का स्मॉल कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में वो आपका रिजॉल्व हो चुका होगा। आई कैन वेट फॉर यू, आपको कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन ऑन कारो एप्लीकेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल कंपनी? So in the chat box, I found no question. I believe there is no doubt. Okay. So क्या ये कहा जा सकता है, if I put it like this, can I say that CARO once applicable always need not remain applicable? Is it the correct statement? क्या हम कह सकते हैं कि कारो अगर एक बार एप्लीकेबल हो गया तो जरूरी नहीं है कि अगले वर्ष भी कारो एप्लीकेबल होगा? We need to evaluate applicability of CARO on year by year basis. Am I correct? क्या मुझे कारो की एप्लीकेबिलिटी हर वर्ष चेक करनी होगी? आंसर इज यस, आपको हर साल कारों की एबिलिटी चेक करनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। विजय भाई तो पहले से जानते ही हैं क्योंकि विजय भाई से सेमिनार में पहले चर्चा हो चुकी है इस बारे में। अगर आपकी कंपनी पर कारो एप्लीकेबल नहीं है ना, और आप कारो इशू कर देते हो, इट्स अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, एज एन ऑडिटर कैन बी पेनलाइज्ड आल्सो अंडर सेक्शन 450 ऑफ कंपनीज एक्ट। आप कल को ये नहीं कह सकते कि वी वर ट्राइंग टू बी ट्रांसपेरेंट। Transparency is on one side, but you cannot be transparent even for those matters which require confidentiality. Under the Chartered Accountants Act, what is written? You cannot disclose the information about the client unless there is a legal requirement. अब कारों का लीगल रिक्वायरमेंट अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप अपनी इच्छा से ये सब चीजें नहीं रिपोर्ट कर सकते। अगर रिपोर्ट करते हो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, और पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 450 रेड विल सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो बड़ा ध्यान से चेक कीजिएगा कि आपके क्लाइंट पर कारो एप्लीकेबल है या नहीं है। तो आई कोटेड दिस पैराग्राफ नंबर 12, एक बार पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। पैरा नंबर 12 of ICI's guidance note on CARA 2020. What it says: once a company qualified as small company, CARA will not be applicable, and general conditions meant for private companies need not be evaluated. And I told you that caution also. You have to mention in the audit report that CARA 2020 is not applicable because the company is a small company. Now, other topic is about internal controls or financial reporting vis-a-vis small company. तो ये टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल कंपनी आप जानते हैं क्या होता है। तो सिंपल सी बात ये याद रखनी है, अगर कंपनी आपकी स्मॉल कंपनी है और आपका क्लाइंट है, देन देयर इज नो नीड टू रिपोर्ट अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 clause I is there, and section 143 subsection 3 clause I says that auditors have to report whether company has adequate internal financial controls with reference to financial statement. So I will skip this very part, small company, क्योंकि स्मॉल कंपनी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको रिपीट नहीं करूंगा, बाकी दो चीजें हम बात करते हैं। Now, what the law says by virtue of the MCA notification, in case of private companies, section 143(3)(I) shall not apply to one-person company, small company, and certain private companies. Small company, I will skip. One-person company, nothing great, because one-person company is a company in which only one individual is a member. There is something important. So there could be a possibility that your company client is not a small company, but is a normal private company which is having turnover of the preceding year more than maybe 40 crores. तो क्या लिखा गया
कि इंटरनल कंट्रोल्स की रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी है, और आई शुड करेक्ट माई सेल्फ, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. Internal controls over financial reporting need not be evaluated and reported thereto if the client is a private company which has turnover less than rupees 50 crores. तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि टर्नओवर उसका 40 करोड़ से ऊपर होगा और 50 करोड़ से नीचे होगा तो यहाँ पर आ सकता है. तो जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे है, and the word is and, it's aggregate borrowing from banks or financial institutions or any body corporate at any point of time during the financial year is less than 25 crores. तो अगर दोनों शर्तें पूरी होती होंगी तो एक प्राइवेट कंपनी पर आप इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं रिपोर्ट करेंगे. गलती क्या होती है नॉर्मल सिनेरियो में, इंडस्ट्री में, हम बोरोइंग्स के अंदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन तो ऐड कर देते हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन ऐड नहीं करते. तो आपको याद रखना है कि जब इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात होती है तो बॉडी कॉर्पोरेट से भी कोई लोन आपने लिया हुआ है तो उसको भी ऐड किया जाएगा. लेट अस सी दिस क्वेश्चन एंड प्लीज रिजॉल्व दिस क्वेश्चन. Let us assume the company is RST Private Limited and we are traveling in the year 2324. The turnover of RST Private Limited for the current year is 45 crores and latest audited financial statement stated कि last year जो turnover था 40 crores था. For the year 2324, the borrowings are as follows. PNB overdraft after 50% repayment 5 crores. Loan from G Capital is NBFC rupees 2 crores. Loan from XYZ Private Limited subsidiary rupees 5 crores. And loan from ABC Private Limited, some other party which is unrelated, rupees 9 crores. आपके सामने ये डेटा है, आप मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू whether as an auditor of RST Private Limited would you be reporting on internal controls for financial reporting? Yes, any answer? एक बार आपको कंडीशंस वापस दिखा देता हूं मैं. These are the conditions. आप सोचिए, बताइए कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स की रिपोर्टिंग करनी है कि नहीं करनी है. इसमें खासतौर से बोरेंस की जो कंडीशन है वो चेक करिएगा क्योंकि बोरेंस कंडीशन इज समथिंग व्हिच इज important over here. The chat box. अनिल जी यस कहना आसान है. शिरीष जी यस, बोरेंस कहना आसान है. आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जो बोरोइंग्स हैं वो बोरोइंग्स कितनी हैं? What will be the amount of borrowing to be considered for the purpose of evaluating ICF for applicability? रमेश जी कहते हैं 26 करोड़ रुपए, चंद्रमोहन जी कहते हैं 26 करोड़. ओके, चलिए देखते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन, टर्नओवर कंडीशन फुलफिल्ड. टर्नओवर इज लेस देन 50 करोड़. बोरिंग कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड बिकॉज बोरिंग इज 26 करोड़. 26 करोड़ का बोरिंग है. 26 करोड़ कैसे आया? वहां पर शब्द थे वर्ड से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो बैंक ओवरड्राफ्ट 5 करोड़ आउटस्टैंडिंग है ना आज. बिफोर रीपेमेंट कितना रहा होगा? 10 करोड़. तो टोटल बोरिंग 10 करोड़ पीएनबी, 2 करोड़ एनबीएफसी एंड हमें बॉडी कॉर्पोरेट से लिया गया लोन भी शामिल करना है. तो 5 करोड़ फ्रॉम एक्सवाइजेड एंड 9 करोड़ फ्रॉम एबीसी. टोटल हो गया 26 करोड़ रुपया. तो बिकॉज टर्नओवर कंडीशन तो फुलफिल हुई बट बोरिंग कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होती है. तो दिस इज रीजन दैट रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज एप्लीकेबल. आई बिलीव दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. तो इसमें जो लर्निंग मेन है, लर्निंग क्या है हमारा? लर्निंग ये है कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी स्मॉल कंपनी हो. ऐसा हो सकता है कंपनी स्मॉल कंपनी हो लेकिन उसका जो एग्रीगेट बोरोइंग है बैंक से, एफआई से और बॉडी कॉर्पोरेट से टोटल मिलाकर 25 करोड़ से ऊपर हो. तो क्या करेंगे तब? इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एप्लीकेबल हो जाएगा. अब रियल वर्ल्ड में क्या हुआ है, लोगों ने माइंड में इसको रिटेन किया हुआ है कि स्मॉल कंपनी पर आईसीएफआर नहीं लगता, लेकिन वे लोग इस थर्ड कंडीशन पर ध्यान नहीं देते हैं. थर्ड कंडीशन क्या है? प्राइवेट कंपनी अदर देन स्मॉल कंपनी. तो आप देखिएगा कि क्या आपका प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी है. इफ द आंसर इज यस तो ये जरूर चेक कीजिएगा क्या उसका बोरोइंग 25 करोड़ से ऊपर तो नहीं हो गया. इफ द आंसर इज यस इन दैट वेरी केस आईसीएफआर विल बी एप्लीकेबल. दो चीजें हैं चंद्रमोहन जी.
हम लोग एक चीज बड़ा ध्यान से समझें, इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अंतर है. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज अ वाइडर वर्जन एंड इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज वन सबसेट ऑफ internal controls. So that we need to capture. So if internal control on financial reporting is weak, that does indicate that internal controls are also weak. They may be requiring reporting on the face of the audit report. तो ऐसी कोई कंपनी जिस पर इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है, इन माय व्यू, if these internal controls or financial reporting are weak, otherwise they are also required to be reported by virtue of overall internal controls to be reported in audit report. Am I clear, Chandra Mohan ji? Now let us proceed further. This question is over. Without searching on Google, please tell me, can a private company accept deposits from the members? क्या एक प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? Just give me a moment. Let me have some water. Meanwhile, you can answer. Please answer in the chat box. Chandramohan ji कहते हैं answer is yes. Okay. Any other person who favors no? Can a private company accept deposit from the members? Members like shareholders. तो हमें ये तो पता है कि एक प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर से या डायरेक्टर के रिलेटिव से डिपॉजिट ले सकती है, बट क्या एक प्राइवेट कंपनी अपने मेंबर से भी डिपॉजिट ले सकती है? आंसर इज यस, बट देयर आर सर्टेन लिमिट्स फॉर इट. तो एक बार देखते हैं वो कंडीशंस क्या हैं. So we have MC notification of June 2015. MC notification stated a private company is allowed to accept deposit from the members in the following scenarios. So these are A, B and C, three scenarios. को किसी भी एक सिनेरियो के अंदर आप फॉलो करते हो तो आप प्राइवेट कंपनी होने के नाते अपने मेंबर से डिपॉजिट्स ले सकते हैं. फर्स्ट, it accepts from members monies up to 100% of paid up share capital plus free reserves plus security stream account. या तो आप फर्स्ट कंडीशन को पूरा कर दो, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में क्या है? कैप है. कैप क्या है कि आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है वो 100% ऑफ कोर कैपिटल से ऊपर ना जाए. और इफ यू आर स्टार्टअप फॉर 5 years फ्रॉम डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, अगर आप स्टार्टअप हो तो स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट होने के अगले 5 साल तक, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 इंक्लूडिंग द इनकॉर्पोरेशन ईयर, आप अपने मेंबर से डिपॉजिट ले सकते हो और इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, अनलाइक लिमिट गिवन इन सिनेरियो नंबर ए. और नंबर सी, क्या कहता है? इट फुलफिल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. व्हाट इज ऑल? अगर आप नीचे लिखी गई तीनों शर्तें ए, बी और सी पूरा कर देते हो तो भी आप अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो और यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है. तो व्हाट आर द कंडीशंस? योर प्राइवेट कंपनी इज नॉट एन एसोसिएट और अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एनी अदर कंपनी. Number second, borrowings of such a company from banks or financial institutions or any body corporate are less than twice the paid up capital or 50 crore rupees, whichever is lower, and the company has not defaulted in repayment of such borrowings subsisting at the time of accepting the deposits. If these conditions are fulfilled, then without any sealing, you can accept the deposit from the members. But in my personal view, this is what the literal interpretation is. My personal view is this scenario number C should not be read in isolation. It should be read in conjunction with A. That's my personal view. But yes, it is a debatable issue and very least used scenario. So depending upon your own wisdom, जो भी आप notification पढ़ें, you can have your own interpretation. There are two school of thoughts. Some people say that C is independent of A. Some people say C is dependent upon A. So depending upon your risk appetite and your own interpretation, you can go ahead. But yes, one thing is certain, that private companies can accept deposit from the members in compliance with the notification of MCA dated 5th June 2015. Sir, one question can I ask? Yes, please, sir. Sir, if a member is who holds, even if one share is holding, he is a member, right? Yes. So if the company's paid up share capital and free reserves is suppose 50 crores. Yes. So even if a single shareholder, can he contribute? Can he deposit 50 crores? Yes, he can contribute 50 crores. Okay. But one thing is important over here.
the very moment he will be contributing 50 crores, it may raise a red flag. But it is within the law, right, sir? So the thing is, things are very much within the law, but simply because the things are in law simply says the procedure, not the intention. I get my point. लॉ तो कहता है कि आप कर सकते हो, लेकिन लॉ के अंदर इंटेंशन कभी कैप्चर नहीं होती ना, तो इट कुड बी अ रेड फ्लैग. अब आपको जब रेड फ्लैग, मतलब क्या है रेड फ्लैग का, somebody में still ask you a question कि आपने जो कंट्रीब्यूशन किया, what was the need for this contribution, why you have not contributed as a shareholder and so on. तो आप ये तो कह सकते हैं हमेशा कि क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ लॉ के हिसाब से तो हो रहा है, बट लॉ के हिसाब से होने के बावजूद भी क्या एक प्रॉपर गवर्नेंस है, क्या प्रॉपर इंटेंशन है, दीज आर ऑलवेज क्वेश्चनेबल. तो वो जो क्वेश्चंस रेज होंगे ना, उसके लिए जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए. हालांकि क्वेश्चंस रेज होंगे नहीं होंगे, आई एम गोइंग टू द एक्सट्रीम सिनेरियो, बट यस, कंसीडरिंग द क्वेश्चन यू आस्क मी कि शेयर तो उसका एक है, लेकिन 50 करोड़ रुपया वो दे रहा है एज अ डिपॉजिट, तो दिस कुड बी अ काइंड ऑफ अ रेड फ्लैग. हाँ, फॉर एग्जाम्पल टेम्पररी उसको देना है कंपनी का, ही वांट्स टू विथड्रॉ इट लेटर ऑन. एक तो तो एक शेयर होल्डर बन के. हाँ, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसका रियल वर्ल्ड में, विदाउट नेमिंग द रियल केस. क्या हुआ, एक कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट थी. हम्म. अब फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए, उसको प्राइवेट कंपनी थी, फंड्स की रिक्वायरमेंट थी, बैंक से लोन मिल नहीं रहा था. उसके एक दोस्त ने अप्रोच किया डायरेक्टर को. नॉर्मली प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर शेयर होल्डर्स भी होते हैं. तो कहा कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है, तो मुझे आप पैसा दे दो. अब पैसा देने के लिए उसने कहा कि मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ. अगर वो डायरेक्टर बन जाएगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि डायरेक्टर्स के फिर उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन एंड ऑल. तो क्या किया उन्होंने, रास्ता निकाला, उन्होंने एक शेयर ट्रांसफर कर दिया. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्टर हो, आपने क्या किया, आपके पास 100 शेयर है, उसमें से मान लीजिए 10 शेयर आपने ट्रांसफर कर दिया अपने दोस्त को, तो वो दोस्त क्या हो जाएगा, कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएगा. और उस शेयर होल्डर ने क्या किया, फिर कंपनी को एक अच्छा पैसा, मोटा अमाउंट एज अ लोन दे दिया, विच वॉज विद इन दी कैप गिवन बाय द कंपनीज एक्ट. लेटर ऑन जो ये बोरोर कंपनी है और जो ये लैंडिंग लैंडिंग पर्सन है, द कंपनी वेंट टू CIRP, एंड लेटर ऑन व्हाट वाज फाउंड कि दिस वाज अ कलरेबल ट्रांजैक्शन. और ये फैसला क्या बनता है, फैसला ये बनता है सिंपली बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज विद द फोर कॉर्नर्स ऑफ द लॉ, द इंटेंशन मे नॉट बी इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ. अच्छा, पता क्या चला इसके अंदर, जब इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ, फोरेंसिक हुआ, तो पता क्या चला, दिस मनी विच वाज ब्रॉट इन वाज लॉन्डर्ड मनी. तो इसलिए मैंने कहा कि ये ट्रांजैक्शन बोनाफाइड्स क्या है इसके, ये ओनर्स जो होगा ना प्रूव करने का, ये आप पर होगा. इज इट नॉट कि वो अप टू दी शेयर होल्डर कंट्रीब्यूशन तक ही उसको लिमिट करना चाहिए था सिंपली? सर बट वो हम आज हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट चेंज द लॉ. राइट. तो अभी तो क्या है ना, अभी तो हमें लॉ के हिसाब से चलना है, बट यस, ऑल थिंग्स आर ऑलवेज डिबेटेबल. इन माय पर्सनल व्यू, जो ये नोटिफिकेशन आया MCA का, इट वाज notified as a kind of a helping hand, but you know राइट. people have some bad intentions also, they always misuse. और पढ़ते तो सर हम टैक्स प्लानिंग ही है, लेकिन लोग तो टैक्स इवेजन भी करते ही है. थैंक यू. Anyways, how many of you know what is the ceiling on number of statutory audits? जो एक क्वेश्चन मैंने कहा था ना कि पेंडिंग करते हैं, दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस दैट क्वेश्चन आल्सो. व्हाट इज द सीलिंग ऑन नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट्स? 10, 20, 30, 40, 50, एनी सीलिंग? हाँ शिरीष जी, मैंने पूछा है स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, आपने जवाब दिया है 60 टैक्स ऑडिट्स का. चंद्रमोहन जी कहते हैं 20, रमेश जी कहते हैं स्मॉल कंपनी नो लिमिट. अच्छा, अभी जो डिस्कशन होगा, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग या आपके दोस्त जो हो जिनको ये बारे में पता चले, वे अपने ऑफिस में जाएं और चेक करें कि उनसे कहीं कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं हो गया. अभी 2-3 दिन पहले आई वाज इन लखनऊ एंड आई वाज एड्रेसिंग ऑन द सेम टॉपिक. So after my speech was over, some people came to me in the lunch break and stated, "Ki Kamalji, this limit has been breached. What is the solution?" So let us discuss overall scenario, then we'll come to the question and answer also. तो पहले जरा law को पढ़ते हैं क्या है. See, the background starts with section number 141(3)(g). Let me show on the screen.
So in companies that we have section number 141 3G and 141 subsection 3 clause G says one auditor can carry out maximum 20 statutory audits. And obviously when we say one auditor, so if you have a partnership firm and say you have 10 partners, so it will be a multiplier effect, 20 multiplied by 10. I'm not going into multiplier effect, let us keep it simple. तो कंपनी लॉ ने कहा कि एक ऑडिटर जो है मैक्सिमम 20 स्टैट्यूटरी ऑडिट्स कर सकता है. Now this provision was notified on 1st April 2014. Later on MCA came up with the notification on 5th June 2015. तो जो नोटिफिकेशन आया ना वो बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए थे, जैसे हमने एक नोटिफिकेशन पीछे देखा अभी, उसमें से एक नोटिफिकेशन आया और वो नोटिफिकेशन क्या कहता है कि जब आप 20 काउंट को कंप्यूट करोगे, इन दिस 20 काउंट the following 4 categories of companies will be excluded: one person company, government company, small company, and those private companies who have paid up capital of less than rupees 100 crore. तो अब big relief was there. तो 100 करोड़ की कैपिटल से नीचे वाले जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी आप 20 में काउंट नहीं करोगे. तो थिंग्स kept on moving like that. But what happened, Institute of Chartered Accountants of India observed, because of this very legal requirement in Companies Act and this exemption, जो ये 4 exemptions दिए गए, इससे हो क्या रहा था, the interpretation was coming out that as an auditor one can undertake 20 statutory audits of public companies, an infinite number, I emphasize the word infinite number of audits of these 4 exempted companies. तो इसकी वजह से क्या होगा, there will be no fair distribution of work. So what happened in February 2020, in February 2020 chapter 8 of Council General Guidelines was amended. आप गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको. And what is the guideline saying? A member of ICAI in practice shall be deemed guilty of professional misconduct if, as an auditor, he undertakes more than 30 statutory audits. And in these 30 statutory audits, only 2 companies will be excluded: one person company and dormant company. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या आता है, अगर मैं कंपनीज एक्ट को और इस गाइडलाइन को हार्मोनियसली स्टडी करता हूं तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन. फर्स्ट, कंप्यूट द लिमिट्स एज पर सेक्शन 141 3G, then compute the limits under council guideline, and then step number 3 is total number of eligible ceiling on audits will be limits under section 141 3G plus exemptions under section 141 3G excluding OPC and DC shall not go beyond 30. तो जो 20 का कैप था ना वो 30 का कैप हो गया, लेकिन 30 कैप के अंदर अब आपको स्मॉल कंपनी शामिल करना पड़ेगा और वह प्राइवेट कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ से नीचे उसको भी शामिल करना पड़ेगा. केवल 2 ही एग्जम्पशंस रह गए ना इफेक्टिवली, तो 1% कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी. तो ओवरऑल जो सीलिंग है वो 30 का है. तो एक क्वेश्चन जरा करते हैं, समझ में आएगा इससे. तो लेट अस अज्यूम मिस्टर एक्स इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके पास ऑलरेडी 14 पब्लिक कंपनीज का स्टैट्यूट है. आप देखिए पॉइंट नंबर 1, पब्लिक कंपनी एग्जिस्टिंग, यानी कि ऑलरेडी मिस्टर एस के पास 14 कंपनीज का स्टैट्यूटरी ऑडिट है. अभी क्या होता है, मिस्टर एस के पास ये 14 कंपनीज तो ऑलरेडी हैं, ये नए क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं. तो 6 प्राइवेट कंपनीज who are having paid up capital of less than 100 crore approached कि आप हमारा ऑडिट कर दीजिए अंडर कंपनीज एक्ट. 4 प्राइवेट कंपनीज whose paid up capital is more than equal to 100 crores also approached कि हमारा ऑडिट कर दीजिए. Similarly 5 OPC approached, 2 dormant companies approached and 8 small companies also approached कि आप हमारा स्टार्ट ऑडिट कर दीजिए. तो आप मुझे बताइए, टेक 30-40 सेकेंड्स एंड आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास ऑलरेडी 14 पब्लिक कंपनीज का स्टैट्यूटरी ऑडिट है, तो आउट ऑफ दीज अपकमिंग क्लाइंट्स आप किसका स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और किस ऑडिट के लिए आपको चॉइस करना पड़ेगा कि छोड़े कि रखें. तो टोटल जो नए क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17 and 8 25 new clients are approaching. So out of these 25 new clients, what will be the new portfolio I should consider? देखिए समझिएगा, पहला स्टेप क्या था, कंप्यूट लिमिट्स अंडर सेक्शन 141 3G. एक बार के लिए आप गाइडलाइन भूल जाइए. तो 141 3G क्या कहता है कि 14 पब्लिक कंपनीज ये तो मेरे पास ऑलरेडी हैं, प्राइवेट कंपनीज लेस देन 100 करोड़ कैपिटल 6 एग्जम्प्टेड है, तो छोड़ दूंगा मैं इनको. तो 14 में 6 शामिल नहीं करेंगे, तो अभी भी मैं 14 पर हूं. प्राइवेट कंपनीज मोर देन इक्वल टू 100 करोड़ कैपिटल, ये एग्जम्प्टेड नहीं है, तो इसको मैं ऐड कर दूंगा. 14 + 4 18 कंपनीज मेरे पास हो जाएंगे अब.
1% कंपनी 141(3)(g में एग्जाम्प्टेड है, डोरमेंट कंपनी 2, ये भी 141(3)(g में एग्जाम्प्टेड है, स्मॉल कंपनीज 8, ये भी 141(3)(g में एग्जाम्प्टेड है। तो अभी तक क्या हुआ, एज पर कंपनीज एक्ट आई विल बी हैविंग टोटल 18 क्लाइंट्स, 14 + 4, और उसके बाद 6 + 5 11, 11 और 2 13, 13 और 8 21, 21 क्लाइंट्स कौन से हो जाएंगे हमारे पास, जो कि कंपनी लॉ के तहत एग्जाम्प्टेड है। लेकिन अब आता है इंस्टीट्यूट गाइडलाइन। व्हाट द गाइडलाइन सेज, गाइडलाइन सेज कि आपके जो 21 क्लाइंट्स बचे हैं, इन 21 क्लाइंट्स के अंदर केवल 1% कंपनी और डोरमेंट कंपनी को या बाहर कर सकते हो। तो हम 5 + 2 7 ये तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। 21 में से 7 क्लाइंट्स को मैं बिना किसी लिमिटेशन के एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचे 6 क्लाइंट्स, तो ये जिनका प्रोडक्ट कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है, और 8 बचे स्मॉल कंपनीज, तो ये 6 + 8 14 क्लाइंट्स बचे। अब जो 14 क्लाइंट्स ये वाले हैं, तो 18 तो मेरे पास पहले से हो गए ना, 14 + 4 18। अब जो बाकी 14 क्लाइंट्स बचे हैं, इफ आई विल ऐड 18 + 14 इट विल बी 32। तो 32 क्लाइंट्स मैं नहीं कर सकता, तो क्या करूंगा मैं, जो मेरे बैलेंस 14 क्लाइंट्स नए आ रहे हैं, इसमें से मैं चॉइस करूंगा कि कौन से 2 क्लाइंट्स छोड़ दूं। आर गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन विल बी दिस वे। So in number 2 and number 6 category, I will make a choice. तो आप सभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मेरी आपसे ये सबमिशन रहेगी, आप चेक कर लीजिए कि क्या आपका सेलिंग एक्सीड तो नहीं हो रहा। और ये आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके जो दोस्त हैं सर्कल में, उनको भी ये बात इंश्योर कीजिएगा कि पता हो। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा अभी तक हाल फिलहाल में कि काफी लोगों को ये जानकारी नहीं है। यहाँ तक कुछ आपका डाउट होता पूछ लीजिए। और मेरा मानना यह है कि हम में से काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, एसएमई सेगमेंट वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे। एसएमई सेगमेंट के अंदर और कुछ ना हो, स्मॉल कंपनी और ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसका पेटा कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है, तो मिल ही जाएगा। तो कल को अगर आप माने चंद्रमोहन जी ये कहे ना मुझे, चंद्रमोहन जी कहे मुझे कि मेरे पास 40 प्राइवेट कंपनीज हैं जिनका मैं ऑडिट करता हूं और उनका जो पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है, तो गलत है। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज 30 से ऊपर जा ही नहीं पाएंगे इस केस के अंदर। क्योंकि 40 प्राइवेट कंपनीज अगर आप कह रहे हो ना, तो 30 से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो आप इसको एक बार देख लो, समझ लो, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। चलिए, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, कुछ ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन था जो मैं बहुत पहले करना चाह रहा था, बट अब सही समय है इसको डिस्कस करने का। तो say while making a choice under section 141(3)(g read with council guidelines, Mr. X declined the audit of DEF private limited small company। तो ऊपर चॉइस बनाना था ना, तो चॉइस बनाने के टाइम पर मिस्टर एक्स ने कहा कि भाई मैं डीईएफ प्राइवेट लिमिटेड जो स्मॉल कंपनी है उसका स्टैट ऑडिट नहीं करूंगा। तो अब डीएफ कहता है कि मिस्टर एक्स, आप मेरा अगर स्टैट ऑडिट नहीं कर रहे हो तो मेरा टैक्स ऑडिट ही कर दो। तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है कि ठीक है, अगर आप मेरा स्टैट ऑडिट नहीं करना चाहते, नो प्रॉब्लम, बट मैं आपको एंगेज करना चाहता हूँ, तो आप मेरा टैक्स ऑडिटर ही कर बन जाइए। क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि कैन मिस्टर एक्स accept the tax audit? Assume that as on date he has only 56 tax audits of various assets। तो टोटल लिमिट तो 60 की है ना टैक्स ऑडिट की। अब 60 में से वो कहते हैं कि 56 टैक्स ऑडिट फाइल्स हैं उसके पास अभी। अब डीएफ कंपनी कहती है कि चलो ठीक है, आप मेरा स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं बंद करना चाहते, आप मेरा टैक्स ऑडिट ही कर दो। तो क्वेश्चन इज कैन ही एक्सेप्ट दिस टैक्स ऑडिट? अच्छा, जितने भी लोग यस कह रहे हैं सबके सब गलत है। और यहाँ से क्वेश्चन उठता है रमेश जी, आपकी मंद मुस्कान से क्वेश्चन याद आता है मुझे। क्वेश्चन ये आता है कि हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर टैक्स ऑडिटर? आपको कभी टाइम मिले ना, क्योंकि सेमिनार में आज के में इतना टाइम नहीं है, मैं आपको हिंट जरूर दे दूंगा। The provisions about disqualification of tax auditors are contained in explanation to section 288, and explanation below section 288 states that, काफी कुछ लिखा है, मैं केवल आज की बात कर रहा हूँ। Explanation below section 288 says that अगर आप किसी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो, तो आप उसका टैक्स ऑडिटर बनने के लिए ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड हो। तो यहाँ से लर्निंग क्या आती है, मेरे पास जो ओवरऑल सेलिंग टैक्स ऑडिट का है वो 60 है, लेकिन मेरे पास अभी यहाँ क्वेश्चन 56 है,
तो लॉजिकली देखा जाए तो मैं 4 क्लाइंट और ले सकता हूँ, लेकिन लीगली मैं क्लाइंट ले नहीं पाऊंगा। क्यों? बिकॉज सेक्शन 288 सेज if you are disqualified to be appointed as statutory auditor of a company, you are also disqualified to be appointed as tax auditor of same company. आपको मैं आंसर स्क्रीन पे दिखाता हूँ। Just see this answer. If a C is disqualified to be appointed as statutory auditor of a company, then is also disqualified to be appointed as auditor of tax auditor of such company. काफी लोगों को शायद ये वाली प्रोविजन पता नहीं होगी। रमेश जी, मैं डिक्लाइनिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप डिक्लाइन कर रहे हो, डिक्लाइन क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आप वो स्मॉल कंपनी के लिए अंडर सेक्शन 141(3)(g डिस्क्वालिफाइड हो गए ना, अगर एक्सपेक्ट करते तो व्हाट यू विल डू, जो आपने डीईएफ कंपनी छोड़ी है उसके बारे में पूछोगे अपने आप से, क्या डीईएफ कंपनी का मैं स्टैट्यूटरी बन सकता हूं? आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि लिमिट जो है 30 अप्रोच हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि वहां डिस्क्वालिफिकेशन आ गया, इस वजह से आप बीइंग अ टैक्स ऑडिटर में डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। शिरीष जी का क्वेश्चन है, विल आंसर बी डिफरेंट इफ डीएफ एज एलएलपी? यस, आंसर विल बी डिफरेंट बिकॉज इन दैट वेरी केस एलएलपी विल नॉट फॉल इनटू सेक्शन 141 ना। सेक्शन 141 तो कंपनी क्लाइंट के लिए एप्लीकेबल है, बट यस एलएलपी के लिए भी डिस्क्वालिफिकेशन है टैक्स ऑडिटर के, उसके लिए आपको सेक्शन 288 देखना पड़ेगा। अगर मैं समरी दूं ना आपको, तो disqualification for tax auditor can be discussed in 2 segments. One is disqualification for company assessee and second is disqualification for non-company assessee. रमेश जी, मेरी बात क्लियर हुई डिक्लाइनिंग और डिस्क्वालिफिकेशन वाली? शिरीष जी, आपका क्वेश्चन भी आंसर हो गया। तो मेरा आपको ये हाथ जोड़ के कह लीजिए विनती है कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलती से टैक्स ऑडिट कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा टैक्स ऑडिट गलत कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ गलती से टैक्स ऑडिटर बन गए हो किसी के। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस दिल्ली में रहा और लखनऊ में रहा अभी, उसमें काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मुझसे मिले, तो उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में पता नहीं था और लिमिट क्रॉस हो गई है। एंड यू नो, इफ द लिमिट इज क्रॉस्ड, मुझे नहीं पता कॉन्सिक्वेंसेज भविष्य में क्या होंगे, बट समबडी में से बिकॉज योर अपॉइंटमेंट वाज वॉइड अब इनिशियो, द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज आल्सो वॉइड अब इनिशियो, तो एक कॉन्सिक्वेंस आ सकता है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, अगर कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि जब भी हमारे सेमिनार्स होते हैं ना इनकम टैक्स के ऊपर, हम हमेशा टीडीएस असेसमेंट्स की बात करते हैं, गवर्नेंस की बात नहीं होती है। सेक्शन 288 जो अभी देख रहे हो आप स्क्रीन पे, गवर्नेंस का पार्ट है। हमेशा मैंने ये तजर्बा लिया है, इवन मैं भी शामिल हूँ उसके अंदर, एज एन ऑडियंस कभी जाता हूँ, तो हमेशा हम टैक्स ऑडिट के लिए बात नहीं करते, टीडीएस की बात करते हैं, टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या हो जाएगी, कैसे कैलकुलेट होगा, इसकी बात करते हैं, 44AB की बात करते हैं, 44AD की बात करते हैं, 280 की बात होती ही नहीं है। तो वो कहीं ना ये ऐसा प्रोविजन है जो लीस्ट डिस्कस्ड प्रोविजन है। कई बार ऐसा लगता है कि ये एक अनसंग हीरो प्रोविजन है जो कि बहुत इम्पैक्ट लेकर आता है। तो आई बिलीव आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। लेट मी मूव फॉरवर्ड। जीएसटी आईटीसी, मेरा डिस्क्लेमर है यहाँ पर एक, आज का जो वेबिनार है ये टॉपिक जीएसटी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है। जीएसटी का जब भी नाम आता है तो जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका जो नर्व लेवल है ना वो बड़ा हाई हो जाता है। तो प्लीज जीएसटी पर ना जाएं आज के टॉपिक में, स्टैट्यूटरी ऑडिट तक कन्फाइंड रहें। और जीएसटी आईटीसी को लेकर हाउ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज रिलेवेंट टू अंडरस्टैंड, लेट अस हैव दिस केस स्टडी। तो अभी रमेश जी क्या हुआ, एक जगह मैंने जीएसटी आईटीसी के बारे में डिस्कशन शुरू किया, लोगों ने टॉपिक डाइवर्ट कर दिया, जीएसटी के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो मैंने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि जीएसटी का कुछ मत पूछिए। Now let us discuss this question and you will find this question interesting also. So what is happening? The books of accounts of RST Private Limited are reflecting GST ITC receivable for rupees 1.60 crores. On the other hand, the GST portal is reflecting the ITC only for rupees 1.20 crores. Normal है, आजकल होता भी है। तो 2B देखा ना आपने, 2B के अंदर जब ITC आ रहा है वो कम आ रहा है और बुक्स में ITC ज्यादा आ रहा है। Now what happened? Number third bullet point, the management of the company has obtained a legal opinion of one of the renowned advocate and has accordingly not reversed the ITC difference of 0.40 crore. तो एक एडवोकेट साहब ने ओपिनियन दिया कि भाई कंपनी बिल्कुल ठीक है, 1,60,00,000 का आईटीसी बनता है आपका, चाहे पोर्टल कुछ भी कह रहा हो, तो उन्होंने 40 लाख का आईटीसी रिवर्स नहीं किया। द जीएसटी आउटपुट लायबिलिटी फॉर द पीरियड हैज बीन से 2.10 crores
On the basis of such legal opinion, the following journal entry was passed in the books of account. GST output liability account debit 2.10 crores. To GST ITC receivable account 1.60 crores. तो इन्होंने 1 करोड़ 60 लाख का ITC अवेल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, जबकि करना चाहिए था 1.20 करोड़ अगर हम पोर्टल की बात करें, लेकिन उन्होंने कहा रिस्क लेंगे हम, वी आर हैप्पी टू टेक द रिस्क, एंड व्हाटएवर बैलेंस इज लेफ्ट दे पेड इट थ्रू बैंक 0.50 करोड़, 50 लाख पे कर दिया। आपके सामने मान लीजिए एंट्री आ जाती है, आपका क्लाइंट है ये, the question is what audit consideration should be complied in the above situation. जल्दबाजी में जवाब मत दीजिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। और मैं आपको हिंट दे देता हूं या एक कैविएट दे देता हूं, इस वाले क्वेश्चन में प्लीज डू नॉट अप्लाई एनी एसे, कोई भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड मत लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा लगेंगे नहीं, बट लेट अस डिस्काउंट एसेज एप्लीकेशन। कंपनी लॉ कुछ बोलता है इस तरह की एंट्री के लिए? लेट मी सी दी चैट बॉक्स, कुछ आंसर किसी के आए हो? चैट बॉक्स अभी खाली है। मेरे को तो केवल रमेश जी नजर आ रहे, तो रमेश जी शुरुआत आपसे करते हैं। कोई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई आपका हिंट? कंपनी लॉ से, एसए में हमें नहीं जाना है, जीएसटी में हमें नहीं जाना है, कंपनी लॉ में कुछ लिखा है इस बारे में? आंसर इज यस। सी इन कंपनी लॉ वी हैव सेक्शन नंबर 141, सॉरी 143, सेक्शन नंबर 143। रमेश जी का एक आंसर है, डिफरेंस शुड बी रिपोर्टेड इन ऑडिट रिपोर्ट्स एंड नोट्स। अब ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है रमेश जी, रिपोर्टिंग तो करना ही है, लेकिन रिपोर्टिंग क्यों करना है, दैट इज द क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सामने स्क्रीन पर। हमारे पास सेक्शन आता है 143 सबसेक्शन क्लॉज बी। सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन क्लॉज बी क्या कहता है? ऑडिटर नीड टू इंक्वायर वेदर ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी व्हिच आर रिप्रेजेंटेड मियरली बुक एंट्रीज। तो ये आउटपुट लायबिलिटी को जब हम लॉक ऑफ करते हैं ना, ये बुक एंट्री होती है, आर बुक एंट्रीज एंड वेदर दीज आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। अब सोचिए यहाँ पर ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर सोचेगा यार ये बुक एंट्री तो कर रखी है, और ये बुक एंट्री जो हुई है लीगल ओपिनियन के बेस के ऊपर। तो ऑडिटर देखेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस एंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लीगल ओपिनियन कैन लीड टू सम रिस्क ऑन द फाइनेंसेस ऑफ कंपनी। तो जो ऑडिटर का जजमेंट होगा ना कि क्या ये प्रेजुडिशियल है कि नहीं है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है उसको। और रिपोर्टिंग क्यों करनी है? बिकॉज 143 1B कहता है। ऐसे गाइडेंस भी है इसके लिए, गाइडेंस क्या कहता है? द पर्पस ऑफ बुक एंट्रीज इज टू करेक्टली रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव इन फैक्ट टेकन प्लेस। इफ अ बुक एंट्री इज पास्ड which is not in accordance with the facts of transaction or is contrary thereto, this should be set right or reported upon by the auditor. You cannot set it right ना, मैनेजमेंट को तो आप कुछ नहीं कह सकते, आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अगेन, if book entries are passed purporting to record transactions which have in fact not taken place, similar considerations would apply. तो अल्टीमेटली देखा जाए ना, गाइडेंस भी जो आईसीआई का वो प्रिसाइज नहीं है, अल्टीमेटली इज लेफ्ट टू द विजडम ऑफ द ऑडिटर। बट इतना जरूर है कि इस वाले एंट्री से मेरा अपना व्यू ये है कि ऑडिटर ये एनालाइज कर ले कि जो ये लीगल ओपिनियन है इसमें कितना स्ट्रेंथ है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट या तो वो क्वालिफाई करे या एम्फेसाइज करे, कुछ भी करे, बट रिपोर्ट तो करे। और रिपोर्टिंग क्यों कर रहा है वो? बिकॉज ऑफ 143 1B। तो आपको जो समय मिले एक बार 143 सबसेक्शन 1 पूरा देखिएगा, उसमें क्लॉज भी स्पेसिफिकली देख लीजिएगा। और हाँ, एक चीज और है कि जो ओपिनियन वाली बात मैंने यहाँ पर की, लीगल ओपिनियन लिया है, इसका एमआरएल भी लीजिएगा। नॉर्मली एमआरएल नहीं मिलता है, केवल ओपिनियन मिल जाता है। रमेश जी, अगर कंपनीज को कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखा रही है, फिर तो मेरी जिम्मेदारी डायरेक्टली आ गई, फिर तो मुझे रिपोर्ट करना ही करना है ना कि बुक एंट्री किया हुआ है। तो एक तरफ बुक एंट्री कर रहे हो, एक तरफ कंटिजेंसी भी दिखा रहे हो, तो कंपनी खुद भी श्योर नहीं है, इसका मतलब कंपनी इन अ वे इज इंडिकेटिंग कि आई एक्सेप्ट कि लायबिलिटी कैन अराइज। फिर तो मेरे लिए और अच्छा है, फिर तो मैं बिल्कुल बिंदास होकर रिपोर्ट करूंगा। So I believe this element is clear to each one of you. The highlight here is section 143 1B. आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने सॉल्यूशन डाल रखा है, सॉल्यूशन आप पढ़ लेना। नाउ नेक्स्ट इज, इसको बाद में करेंगे, टाइम बचा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पे आते हैं। अब जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना 90s वाले, शेयर एप्लीकेशन मनी को सुन के खुश हो जाते हैं, क्योंकि काफी इस्तेमाल होता था किसी जमाने में इसका। आज भी चीजें हैं, बट आज थोड़ी बदल चुकी हैं। इसको समझने के लिए, डील करने के लिए एक केस स्टडी उठाते हैं। जरा क्वेश्चन देखिए। अभी क्या हुआ जी, कंपनी है आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड। आरएसटी प्राइवेट लिमिटेड को
15 जनवरी 2023, 15 जनवरी 23, ये डेट लिखी है यहाँ पे. So on this very date, the company received share application money and the money was received through banking channels. So पैसा बैंक में आया and this amount received was rupees 100 lakhs and this money is still outstanding as on 31st March 24. तो 15 जनवरी 2023 को जो शेयर एप्लीकेशन मनी आया वो 31/3/2023 को भी आउटस्टैंडिंग रहा, 31/3/2024 को भी आउटस्टैंडिंग रहा. आज हम बात कर रहे हैं 2023-2024 के लिए. The question here is, what are the reporting considerations for the statutory auditor to be considered for the financial year ending on 31st March 24? Any answer? इसमें बड़ा सोच के जवाब दीजिएगा. ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है और आज भी लोग इसमें गलत रिपोर्ट करते हैं. क्या रिपोर्टिंग करना चाहिए? इसमें 3 रिपोर्टिंग होनी है प्राइमरीली, और भी रिपोर्टिंग हो सकती है बट 3 प्राइम रिपोर्ट्स हैं. अभी तक तो कोई आंसर नहीं है. मैं आपको हिंट दे देता हूं, शायद कुछ हेल्प मिले. डिपॉजिट, इंटरेस्ट, डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन. I repeat, 3 elemental hints are deposit, interest and director's disqualification. इन 3 चीजों की रिपोर्टिंग के बारे में कुछ सोचिए. How this will be inculcated. जो समझिएगा लॉ क्या कहता है. तो इफ यू रेफर कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, आप रूल नंबर नोट कर लो चाहे. रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज सी आइटम 7. आसान भाषा में कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स. तो कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स कहते हैं, यस रमेश जी, आपका पहला पार्ट तो बिल्कुल ठीक लिखा है आपने. कंपनीज एक्सेप्टेंस डिपॉजिट रूल्स कहते हैं कि if the company has received share application money, then this share application money shall be allotted within 60 days from the date of receipt. If it is not so allotted, then it shall be refunded within next 15 days. And if it is not so refunded, it will be deemed as deposit. तो अभी क्या हुआ है कि टोटल विंडो मेरे पास 75 डेज का है. जो ये 75 डेज हैं ये 31 मार्च 2023 को एक्सपायर हो चुके हैं. यानी कि एज ऑन 31 मार्च 23 दिस अमाउंट ऑफ रुपीज 100 lakhs बिकेम डिपॉजिट. अगर आप 15 जनवरी से काउंट करेंगे ना तो 31 मार्च 2023 तक आपका 75 डेज का विंडो खत्म हो चुका है. तो ये 100 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया 31 मार्च 2023 को डिपॉजिट तो बन गया. अब दूसरी चीज पर आते हैं. लॉ में लिखा गया सेक्शन नंबर 42 में, when you will refund this amount, you have to pay interest at 12% per annum. अब देखिए हुआ क्या है. This rupees 100 lakhs, this rupees 100 lakhs is outstanding even on 31st March 24. So that means in the balance sheet there must have been an item provision for interest payable on share application money at 12% per annum rate. This provision is missing. तो पहला क्वालिफिकेशन तो आपका आ जाएगा कॉन्ट्रावेंशन और डिपॉजिट रूल का. दूसरा क्वालिफिकेशन आपका आ जाएगा दैट प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर. So one element is left out. From this very question, again have a look out on the data given to you. मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर कोई केस डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन की बनता है? अभी अगर मैं आपको याद दिलाऊं, in companies that we have section number 143 subsection 3 clause G. Section 143 subsection 3 clause G क्या कहता है? Auditors have to report whether directors are disqualified or not under section number 164(2) of the act. तो आप इसमें देखिए इस क्वेश्चन में कि क्या कोई डायरेक्टर सेक्शन 164(2) में डिस्क्वालिफाइड होता है. Whether any director is getting disqualified under section 164(2). अब आपको याद दिलाता हूं. 164(2) को अगर आप पढ़ेंगे इसमें लिखा गया है द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शैल बी डिस्क्वालिफाइड इफ दे हैव मेड एनुअल फाइलिंग डिफॉल्ट फॉर 3 कंटिन्यूअस ईयर्स. ये वाला प्रोविजन तो यहाँ पे लगता नहीं है. दूसरा प्रोविजन क्या आता है? इफ दे हैव मेड अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स or interest thereon, debentures or interest thereon, or dividend for a period of more than equal to 1 year from the due date. तो ड्यू डेट हो जाने के 1 साल या उससे ज्यादा के लिए अगर आपने पैसा रिपे नहीं किया तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. अब 1 साल तो हो चुका है यहाँ पर,
डिपॉजिट बने हुए और पैसे वापस गया नहीं है, तो डायरेक्टर्स आर आल्सो डिस्क्वालिफाइड। और ये रियल केस है, रियल वर्ल्ड का। तो ऑडिटर्स ने क्या किया, जब ये रियल वर्ल्ड का मैं बताऊं आपको सिनेरियो, रियल वर्ल्ड के अंदर ऑडिटर्स ने ये तो रिपोर्ट किया कि डिपॉजिट बन गया है, बट ये रिपोर्ट नहीं किया डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड है। और नॉर्मल लैंग्वेज क्या चलता है, नॉर्मल लैंग्वेज चलता है, हम ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी वी रिपोर्ट दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी है। एक तरफ आप कहते हो कि मैंने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन को जो कंपनी ने प्रोवाइड किया, तो हमने चेक तो किया ही नहीं, तो इट इज अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑल्सो। तो यहाँ पर 3 चीजें रिपोर्ट करनी है आपको, सोल्यूशन मैंने इसमें डाल रखा है आपके लिए ऑलरेडी। तो क्या रिपोर्ट करना है, एक तो 12% का प्रोविजन नहीं बना इंटरेस्ट का, दूसरा ये डिपॉजिट बन गया है, तो डिपॉजिट बन जाए तो कॉन्ट्रावेंशन है ना सेक्शन 73 का, ये रूल नंबर भी लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ये डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन है, तो ये हमारा ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। आप एक बार ये डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन देख लीजिए। तो अगर आपका कोई क्लाइंट है उसमें शेयर एप्लीकेशन मनी का मैटर है, तो प्लीज देख लीजिएगा कि सारी चीजें एक तरफ है, डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कारो एप्लीकेबल हो जाता है। अभी तो मैंने assumption लिया ना कारो एप्लीकेबल नहीं है, अगर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा ना, तो 2 जगह रिपोर्टिंग और होगा। एक तो होगा पैरा 3(5) में, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस अबाउट डिपॉजिट सेक्शन 73 to 76। दूसरा रिपोर्टिंग होगा पैरा 3(14) में, रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42। और गेट माई पॉइंट, डिटेल में तो आप इसको जब करोगे तो लग ही जाएगा पता। तो अगर कारो भी लग जाता है ना कंपनी पर, और शेयर एप्लीकेशन का मैटर आ जाता है, तो 2 जगह कारो में रिपोर्टिंग होगी, पैरा 3(5) रिगार्डिंग डिपॉजिट्स, पैरा 3(14) रिगार्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट। ये खास बात हमें याद रखनी है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, कोई आपका डाउट होता है मुझसे पूछ लीजिए। ओके, अभी तो कुछ आया नहीं है, तो आई बिलीव देयर इज नो डाउट। ओके, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अगेन अ डिस्क्लेमर, मैं आपको याद दिला दूं कि आज का टॉपिक स्टैट्यूटरी ऑडिट का है, इनकम टैक्स एक्ट का नहीं है। तो प्लीज डू नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन 43(b)(h। तो लेट अस कन्फाइन आवरसेल्फ टू कंपनीज एक्ट अलोन। अब ये आज का जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यहाँ पर है, ये मैंने टॉपिक क्यों उठाया कंपनीज एक्ट के लिए, द रीजन इज शेड्यूल 3। हैव अ लुकआउट। शेड्यूल 3 का जो बैलेंस शीट बनता है उसमें आता है ट्रेड पेबल। उसका ब्रेकअप क्या आता है, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, और दूसरा क्या है, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। आपके लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्क्लोजर इज नॉट अ प्रॉब्लम बट डिस्क्लोजर लीड्स टू अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 एज अ मैटर प्रॉब्लम इज, 3 वर्ड्स आते हैं हमारे पास, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज एंड मीडियम एंटरप्राइज। पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक ट्रेडिंग एंटरप्राइज, एक ट्रेडिंग एंटरप्राइज माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज बन सकती है, और अगर वो बन सकती है तो क्या उसको एमएसएमईडी एक्ट के बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट इज डिस्कशन अबाउट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। सेकंड इज, if you refer MSMED law, MSMED act I should say rather, तो क्वेश्चन इज, वहां पर आता है सेक्शन 15, सेक्शन 16, if you are not paying to the supplier within 45 days irrespective of your agreement, then you have to pay the interest also, and that interest is thrice rate। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर, जो मीडियम एंटरप्राइज होता है, मीडियम एंटरप्राइज, क्या उसको एमएसएमईडी एक्ट का डिलेड पेमेंट का बेनिफिट मिलेगा 45 डेज वाला। So two questions are there. One is whether trading enterprises are the part of MSMED benefits given by 15, 16 sections. And then is number second is about this issue कि क्या मीडियम एंटरप्राइज जो होता है उसको 45 डेज का बेनिफिट मिलता है। रमेश जी कहते हैं नो, ट्रेडिंग कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज एमएसएमई ओनली फॉर द, यस रमेश जी बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। चंद्रमोहन जी क्या कहते हैं, चंद्रमोहन जी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं मुझे, पढ़ देता हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट। चंद्रमोहन जी थैंक यू। I read your book and would like to be connected with you for more sessions. How can I connect? ये विजय जी से बात कीजिएगा, विजय जी के पास मेरी पूरी जन्म पत्री है, तो बता देंगे कैसे कनेक्ट होना है, फोन नंबर वगैरह ले लीजिएगा आप उनसे। बट एनीवेज लेट अस कम टू द टॉपिक।
तो अभी रमेश जी ने एक जवाब दिया ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस का. यू नो द थिंग इज, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का जुलाई 2021, जुलाई 2021 का एक ऑर्डर है. एंड व्हाट द ऑर्डर सेज, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस आर अलाउड टू ऑब्टेन उद्यम रजिस्ट्रेशन only for the limited purposes of priority sector lending benefits. यानी कि जो ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस हैं उनको एमएसएमईडी एक्ट का कोई लाभ नहीं मिलता, कोई बेनिफिट नहीं है. उनको बस एक फायदा दिया गया कि आप अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लो ताकि आपको बैंक से इंटरेस्ट सबवेंशन वगैरह मिल सके, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग. तो अब आपके लिए क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, इफ योर कंपनी इज हैविंग ड्यूज टुवर्ड्स ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस and that trading enterprise is registered under MSMED Act, तो उस ट्रेडिंग एंटरप्राइज को आप कहां दिखाएंगे? टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज वाले कॉलम में दिखाएंगे या टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज अदर देन में दिखाएंगे? ये आएगा अदर देन में. बिल्कुल सही जवाब दिया रमेश जी आपने. तो ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस को ना गलती से भी यहां मत दिखा दीजिएगा ए में, वो जाएगा लॉज नंबर बी में. क्योंकि हमें क्या याद रखना है कि माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज हियर मींस द एंटरप्राइजेस एज पर द एमएसएमईडी एक्ट. ट्रेडिंग एंटरप्राइज इज नॉट कंसीडर्ड एज एंटरप्राइज इवन फॉर एमएसएमईडी एक्ट. अब मैं इसको दिखाता हूं मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं. अब देखिए डेफिनेशन देखिएगा यहाँ पर एंटरप्राइज का. एंटरप्राइज मींस एटसेट्रा एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड देन एटसेट्रा एंगेज इन सर्विसिंग. तो अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज देखते हो ना, एंटरप्राइज के अंदर दो ही लोग आते हैं, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर. ट्रेडिंग तो है ही नहीं. इसमें शेड्यूल 3 में कहा जाएगा अदर देन माइक्रो एंटरप्राइज, अदर देन स्मॉल एंटरप्राइज. और ये यहाँ पर ना स्क्रीनशॉट है, जब पीपीटी मिलेगा आपको मिल जाएगा. तो जुलाई 2 2021 का ये ऑर्डर है एमएसएमई मिनिस्ट्री का, ऑफिस मेमोरेंडम है. इसमें मैं नंबर 2 पॉइंट पढ़ रहा हूँ. The government has received various representations and it has been decided to include retail and wholesale trades as MSMEs, and they're allowed to be registered on Udyam registration portal. However, benefits to retail and wholesale trade MSMEs are to be restricted to priority sector lending only. तो ये ध्यान रखना है कि अगर ट्रेडिंग एंटरप्राइज को ड्यू है तो वो वाला ड्यू आप शेड्यूल 3 में कहा दिखाएंगे, अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज में. दूसरा थोड़ा सा ये मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि ट्रेडिंग एंटरप्राइज को 45 डेज के डिले वाला बेनिफिट नहीं मिलता. हालांकि मैंने डिस्क्लेमर दिया कि 43 भी एच में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट जो भी डिस्कशन अभी हो रहा है ना, ये 43 भी एच के लिए भी यूज हो जाएगा, बिकॉज वहां पर जो डेफिनेशन है वो यहाँ से ही ली गई हैं. तो इवन इफ यू हैव सम लायबिलिटी टुवर्ड्स एमएसएमई ट्रेडर्स, देन 43 बी एच विल बी हैविंग अदर काइंड ऑफ इम्प्लीकेशन, क्योंकि वहां पर भी इसको एमएसएमई ट्रीट नहीं किया जाएगा. अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, बट अबाउट मीडियम एंटरप्राइजेस. तो बट यू नीड टू अंडरस्टैंड सेक्शन 15 क्या कहता है. देखिएगा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 15 नंबर सेक्शन, 16 नंबर सेक्शन. द वर्ड इज सप्लायर. देखिए वर्ड क्या है. Section 15 says the buyer shall make payment on or before the date agreed upon between him and the supplier, and the days shall not exceed 45 days. तो मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ. इस सप्लायर का वर्ड देखो आप क्या लिखा गया है कि बायर जो है सप्लायर को टाइम से पे करेगा, और ये टाइम जो है चाहे आपके बीच में कोई भी एग्रीमेंट हो 45 डेज से ऊपर नहीं जाएगा. वर्ड क्या है? सप्लायर. And how the word supplier is defined? The word supplier is defined by section number 2, clause N of the MSMED Act. And how they say supplier means micro और small enterprise. Medium शामिल है क्या? Answer is no. क्योंकि मीडियम यहाँ पर शामिल नहीं है ना, तो 45 डेज वाला बेनिफिट मीडियम एंटरप्राइज को नहीं मिलेगा. इसके लिए जजमेंट भी आ चुका है अब तो. कलकत्ता हाईकोर्ट जजमेंट है जुलाई 2023 का. जजमेंट में क्या कहा गया? Calcutta High Court in Winsome International case held that defaulting buyer not liable to pay interest at 3 times bank rate if supplier is a medium enterprise. तो ये खास हमें बात ध्यान रखनी है कि मीडियम एंटरप्राइज को भी एमएसएमईडी का जो 45 दिन का बेनिफिट है वो नहीं मिलता. एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू 43 बीएच आल्सो. क्योंकि आप ये नहीं कह सकते ना कि एमएसएमई की परिभाषा कंपनी लॉ के लिए कुछ और लूंगा, इनकम टैक्स के लिए कुछ और लूंगा, बिकॉज कंपनीज एक्ट एज वेल एज इनकम टैक्स एक्ट both are taking the basis as MSMED Act only. So you will take the definition from this place itself. Yes, रमेश जी, जो आपने बात लिखी है ये बड़ा कम्बरसम टास्क है, how to verify all these things. And एक जजमेंट भी है सिल्पी इंडस्ट्रीज का. In Silpi Industries it was stated, if you have not obtained MSME registration number, you will not be given any benefit of MSMED Act.
ये जरूरी हो जाता है इसलिए क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का कुछ सालों पहले जजमेंट आया था रैम के इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, और उसमें कहा गया था कि एमएसएमई का बेनिफिट दिया जाएगा अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन बाद में फिर उद्यम पोर्टल वगैरह की बातें शुरू हुई 2020 में, और उस दौरान एक जजमेंट आया शिल्पी इंडस्ट्रीज का, जहां पर ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आई थिंक, ये उसमें कहा गया अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है एमएसएमई का तो आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा एमएसएमई लॉ। तो यहाँ से आज के अभी जो डिस्कशन मैंने किया, दो तीन बातें हैं जो मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली बात, ट्रेडिंग एंटरप्राइज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एमएसएमई एंटरप्राइज। दूसरी बात, मीडियम एंटरप्राइज will not be considered a supplier for the purpose of MSME Act, and hence if delayed payments are made to medium enterprises, then they will not be getting any advantage of 45 days and thrice the bank rate of the fine interest. मैं यहाँ पर रुकता हूँ, यहाँ पर कोई आपको डाउट होता पूछ लीजिए। और मेरी आपको ये एक सबमिशन रहेगी कि आपको समय मिले तो ये जजमेंट आप डाउनलोड कर लेना, विंसम इंटरनेशनल लिमिटेड का, इंडियन कानून की साइट से मिल जाना चाहिए या गूगल से सर्च करके मिल जाएगा। ये हमारे पास होना चाहिए वर्किंग पेपर्स में, बिल्कुल कोई पूछे तो कह तो सके कि मीडियम का प्रोविजन हमने क्यों नहीं किया। तो आई बिलीव दिस पॉइंट इज आल्सो क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। एक लास्ट टॉपिक करते हैं फिर रैप अप करते हैं। ऑडिट ट्रेल, ऑल द टॉपिक इज बिग, बट मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है इसके अंदर। ये इसका सारा समरी है। एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पर लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ लिखा है बुक्स ऑफ अकाउंट। कंपनी को ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि ऑडिट ट्रेल मेंटेन किया था या नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिस ईयर ऑल्सो। क्वेश्चन आपके लिए उठता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, क्या ऑडिट ट्रेल मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए भी ऑब्टेन करना है, आई मीन मेंटेन करना है? वेदर ऑडिट ट्रेल नीड्स टू बी मेंटेन्ड इवन फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मान लीजिए आपका क्लाइंट है, उस क्लाइंट के ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल होते हैं और वो अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है कंप्यूटर के ऊपर। तो क्वेश्चन उठता है कि वेदर ऑडिट ट्रेल इज रिक्वायर्ड इवन फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हिच आर मेंटेन्ड ऑन कंप्यूटर। So if cost accounting records are electronically maintained, whether audit trail is required or not? Any answer? आप एक सेक्शन नोट कीजिएगा, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13 of Companies Act defines books of accounts. What it says, books of accounts includes the records in respect of, books of account includes the records in respect of, number one, for example, number one, all the receipts and payments. Then number two, all the sales and purchases. Then number three, all the assets and liabilities. And then number four, cost records if applicable. तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट का डेफिनेशन है उसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी एक कंपोनेंट है, और रिक्वायरमेंट क्या है लॉ की कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हो तो ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना है जिसमें ऑडिट ट्रेल फीचर हो। तो अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हैं तो आपको वहां पर भी ऑडिट ट्रेल फीचर चेक करना है। अभी तक मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया इंडस्ट्री में इस पर किसी का ध्यान गया ही नहीं, आई डोंट नो व्हाई। So books of accounts shall be defined as per Companies Act, yes. And one of the component of books of accounts is cost accounting records. So we need to understand and underscore is, if cost accounting records are maintained electronically, in such a case, audit trail is required even for cost accounting records. I believe this point is clear to each one of you. There is a question by Chandra Mohanji. In sundry criteria, one of the service provider is not registered under GST. It can be said that he may fall within the small enterprises, but after various follow-up by the companies, service provider do not share उद्यम registration number where to show. सर अगर उसने आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया है तो आप इसको अदर देन माइक्रोसॉफ्ट में दिखाएंगे, क्योंकि जजमेंट है शिल्पी इंडस्ट्रीज का जिसमें कहा गया कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप इसको बेनिफिट नहीं देंगे एमएसएमई का। बट दिस क्वेश्चन इज टू मच एडवांस क्वेश्चन, उससे पहले कुछ हमें इंटरनल वर्किंग भी करनी होगी ना। वर्किंग क्या है, जितने भी मेरे वेंडर्स हैं उनको मैं कम्युनिकेशन डालूंगा, कम्युनिकेशन में लिखूंगा कि मुझे बताइए आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, अगर आप नहीं बताएंगे आई एम कंस्ट्रेन्ड टू प्रेज्यूम दैट यू आर नॉट एमएसएमई एंटरप्राइज। तो जब वहां से कोई जवाब नहीं आएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपके पास है नहीं, तो ऑब्वियसली इट विल गो टू एंटरप्राइजेस अदर देन एमएसएमई एंटरप्राइजेस। हमें अगले चंद्र मोहन जी, और अभी जो मैंने डिस्कशन किया ऑडिट ट्रेल का, इसमें जो मेजर लर्निंग है, मेजर लर्निंग ये है कि आपको अगर कंपनी के ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स की एप्लीकेशन नजर आती है
एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इलेक्ट्रॉनिकली, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के लिए भी आपको ऑडिट ट्रेल चेक करना होगा। सिमिलरली मैं आपको और बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अभी मैंने डिफाइन किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या लिखा था, रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है वो भी तो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। अगर कोई कंपनी फिक्स्ड एसेट रजिस्टर को एक्सेल पर मेंटेन करता है, आई रिपीट, अगर कोई कंपनी फिक्स्ड एसेट रजिस्टर को एक्सेल पर मेंटेन करता है, तो एक्सेल सॉफ्टवेयर, और उसमें भी ऑडिट ट्रेल चाहिए। अब मुझसे आप ये मत पूछिएगा कि ऑडिट ट्रेल कैसे निकलेगा वहां पर, उसके लिए मैं भी हेल्पलेस हूँ। But legally, if FAR is maintained electronically on Excel sheet, Excel is accounting software, yes. In such a case, audit trail is required. Answer again is yes. और अगर आपको ऑडिट ट्रेल नहीं मिल रहा है for any reason, always disclaim in rule number 11G. Simply say कि we were not in a position to identify and vouch audit trail because of the lack of data given by the client. There's a question by Ramesh ji. Shall the auditors keep log of audit trail in working paper with proof? It is advisable to keep the proof. और जो वो प्रूफ होगा ना रमेश जी, उसमें दो चीजें हैं खास ध्यान देने वाली। पहला, उस पर साइन होने चाहिए क्लाइंट के, बट दिस इज वेरी इजी टू से। अब मान लीजिए जो ऑडिट लॉग है, इट इज रनिंग इन थाउजेंड ऑफ पेजेस, तो साइन भी नहीं हो सकते हैं। तो उस केस में आप इसको ईमेल पे लेंगे, और ईमेल के अंदर जो लिखा होगा इट विल ऑटोमेटिकली सर्व एज अ पर्पस। बट यस, इट्स अ वेरी गुड सजेशन, ऑडिट ट्रेल का जो लॉग है वो हमारे पास वर्किंग में एज अ प्रूफ होना ही चाहिए। तो विजय जी, मेरी तरफ से तो यही है। किसी का कोई क्वेश्चन और हो तो मैं आंसर करना चाहूंगा। Otherwise, it had been a very good experience over these 4 days. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। मैंने वो जजमेंट जो आपने बोली न्यू इंडिया एश्योरेंस की, वो लगा दिए चैट, अच्छा, दे कैन डाउनलोड। एनी क्वेश्चंस प्लीज, all are free to ask questions. You can unmute and ask your question. सर क्वेश्चन चंद्र मोहन जी, एक्सेल में एफ रजिस्टर मेंटेन किया है, हाउ टू चेक ऑडिट ट्रेल। चंद्र मोहन जी, ये मेरे लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा, बट मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि ऑडिट ट्रेल को चेक करने के लिए वी नीड सम मोर थिंग्स टू डू। एक्सेल में ना एक फीचर आता है ट्रैक चेंज फीचर, जैसे एमएस वर्ड में होता है ट्रैक चेंज फीचर। तो एक्सेल में वो ट्रैक चेंज फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं होता, आपको वो ट्रैक चेंज फीचर इनेबल करना पड़ेगा। जैसे आप इनेबल करेंगे, वट एवर चेंजेस यू विल बी डूइंग, उसका ऑडिट लॉग बनता चला जाएगा। अब वो इनेबल कैसे होगा, उसके लिए मेरे पास समय कम है समझाने के लिए। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा हाउ टू इनेबल ट्रैक चेंज फीचर इन एमएस एक्सेल, आपको अपना समझ में आ जाएगा। नहीं, बट इवन आप इसमें प्रॉपर्टीज में भी जाएंगे ना, वो फाइल के, तो मॉडिफिकेशन डेट्स पता चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्या मॉडिफाई हुआ वो मालूम करना मुश्किल। हाँ, मॉडिफिकेशन प्रॉपर्टी से लग जाएगा पता, बट वो आइटम बाय आइटम नहीं मिलेगा। हाँ नहीं, मॉडिफिकेशन प्रॉपर्टीज डेट्स मिल जाएगा, कब कब मॉडिफाई हुआ। हाँ जी, सर एसएमएस में हाँ जी। आप कंपनी को कंपलसरी है कि उनके कांटेक्ट करके पूछेगा एसएमए, क्या वो एसएमए पर लायबिलिटी है कि तुम बताओ कि हम एसएमए है बोल के? देखो, एसएमई पे कोई लायबिलिटी नहीं है। अल्टीमेटली जो ये अमेंडमेंट्स आए सारे के सारे एसएमई के बेनिफिट्स के लिए हैं, बट इन द नेम ऑफ बेनिफिट द कंपनीज कैन नॉट बी एज अ बायर, कैन नॉट बी एट रैंसम। तो उसमें कंपनी तो यही कर सकता है कि कंपनी कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटर टू इन्वेस्टिगेट ना कि आप एमएसएमई हो कि नहीं हो। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेशन कीजिए और पूछिए कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो तो मुझे आप सर्टिफिकेशन दे दो। इफ दे आर नॉट रिप्लाइंग, तो आपका जो कम्युनिकेशन जाएगा उसमें एक लाइन डाल दीजिए आखिर में कि अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो हम प्रेज्यूम करेंगे कि आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड ही नहीं हो। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है रूल ऑफ एस्टॉपल। अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो दे विल बी बाउंडेड बाय रूल ऑफ एस्टॉपल। दैट मींस कि दे आर इन कंसेंट विद व्हाटएवर वी आर प्रेज्यूमिंग। नहीं, वही मैं पूछ रहा था कि कंपनी को कंपलसरी है कि आप पूछो कि आप है कि नहीं, या फिर एसएमए का रिस्पॉन्स कि तुम आप बताओ कि आप है बोल के, ऐसा? सर, कंपलसरी दोनों के लिए ही नहीं है, अच्छा, वही ना पूछ कंपनी के लिए ना एमएसएमई के लिए। बट हियर द क्वेश्चन इज कि अगर कंपनी ये कम्युनिकेशन नहीं करता, तो या हम ऐसे कि दोनों में से ज्यादा रिस्क पर कौन है? कंपनी ज्यादा रिस्क पर है। ओके। कंपनी रिस्क को कैसे मिटिगेट करेगा? कंपनी विल टेक सम स्टेप्स। तो जो मैंने अभी सजेशन दिया
It is not a compulsory measure. It is a kind of risk mitigation measure. ओके इट इज समथिंग लाइक कि सर्दियों में, या दिल्ली में सर्दी पड़ती है, तो सर्दियों में जब आप स्कूटर या बाइक चलाते हो तो हैंड ग्लव्स पहनना कंपलसरी नहीं है, बट हैंड ग्लव्स लोग पहनते हैं ताकि सेफ्टी रहे, ठंड ना लगे. सेम थिंग इज हियर आल्सो, दैट यू हैव टू हैव अ रिस्क मिटिगेशन शील्ड, कि मैंने कुछ तो किया. ओके क्वेश्चन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के लिए था. कैन आई हाँ जी. आस्क? यस सर. सर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कंपनीज एक्ट में एंड इनकम टैक्स एक्ट में डीम डिविडेंड का. हम्म. तो अब तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स का एक एग्जेम्पशन तो है 5 जून 2015 के नोटिफिकेशन में इन कंपनीज एक्ट, बट डीम डिविडेंड का कुछ ये है सर, एक्सेप्शन है जो. कोई एग्जाम्पशन नहीं है सर. कंपनीज एक्ट का जो एग्जाम्पशन है उसका इनकम टैक्स से कोई लेना देना ही नहीं है. नहीं, एग्रीड सर, वो अलग है, बट डीम डिविडेंड में दे आर सेइंग इवन वन डे अगर वो डेबिट हो गया देन इट विल बी कंसीडर्ड हाँ, डीम यस डिविडेंड. यस यस. देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट. नो एग्जाम्पशन, नो एग्जाम्पशन. एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको मैं मजे की बात बताऊं, there are certain transactions which are not deemed as RPT under Companies Act but are RPT under accounting standards. एग्जाम्पल से समझाता हूँ. अगर आपने डायरेक्टर को लोन सॉरी आपने डायरेक्टर से लोन लिया, डायरेक्टर से लोन लेना इज नॉट अ आरपीटी अंडर सेक्शन 188. You can check the list of section 188. There is no loan transaction return, but under accounting standard it is a loan transaction and it is a RPT. तो हमें ये भी चेक करना है कि कोई ट्रांजेक्शन कंपनी लॉ में हो सकता है आरपीटी ना हो, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आरपीटी हो. थैंक यू. अच्छा, बात बताइए, इंटरेस्टिंगली एक क्वेश्चन दिमाग में आया बात करते करते. हम निकालते हैं अर्निंग पर शेयर. तो मान लीजिए इन योर केस देयर आर टू क्लास ऑफ कैपिटल, इक्विटी कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल. वेदर वी नीड टू कंप्यूट अर्निंग पर शेयर फॉर बोथ इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस. अभी रमेश जी क्या हुआ, किसी सीए फर्म ने हमें एंगेज किया था उनकी ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए. तो इन दैट वेरी ऑडिटेड रिजल्ट विजय भाई, हमने देखा कि अर्निंग पर शेयर निकाल रखा है इक्विटी के लिए अलग से और प्रेफरेंस के लिए अलग से. अभी मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाला था इसको, लिंक्डइन पर, और काफी लोगों ने कहा कि सीएफएम ठीक है, सोशल मीडिया पर भी. इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए ईपीएस निकलता है बस. तो प्रेफरेंस शेयर के लिए ईपीएस नहीं निकाला जाता. तो अगर आपका क्लाइंट है और उसके पास इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों क्लास ऑफ कैपिटल है, तो यू विल कंप्यूट ईपीएस ओनली फॉर इक्विटी शेयर्स. द फॉर्मूला क्या है इसका? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स attributable to equity shareholders. So something which is attributable to equity shareholders cannot be attributed to preference shares. तो ये ध्यान रखना है हमें कि ईपीएस हमें केवल और केवल इक्विटी के लिए निकालना है. There is no need to go for a preference. तो कई बार है ना, क्या होता है, too much of knowledge also become dangerous. This is that very case. विजय जी, any other question? आपने जो हमें आदेश दिया था, कोशिश की है मैंने अपनी तरफ से उसको निभाने की. Sir, in case of a small company where accounts are maintained only after the month of March, audit trail will not be. How will it work over there? No problem, na sir. The good thing is, neither the Companies Act nor the accounting standards are telling you the date on which the books of accounts shall be maintained for a given financial year. So if you are maintaining books of accounts for a given financial year after the expiry of financial year, no problem at all. Okay. तो जिस दिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना शुरू करेंगे, मान लीजिए आपका जो साल खत्म होता है वो 31 मार्च 24 को खत्म होता है, आपने पूरे साल की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं से 15 अप्रैल 2024 को ऑफिस में पूरे दिन बैठ के कंप्लीट कर दी, तो ऑडिट ट्रेल उस दिन कैप्चर हो जाएगा. हमें क्लियर मनोज जी? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes, Any विजय other जी? query? और तो क्वेरी सर मुझे नजर नहीं आ रही हैं. आई थिंक जो क्वेरीज लोगों ने पूछी वो मैंने बता भी दी है. अभी तो चैट बॉक्स तो खाली है सर. तो कमल जी, पर्सनली ईपीए और हमारे बाकी एसोसिएशंस की तरफ से आई वुड लाइक टू थैंक यू पर्सनली All for my pleasure, having sir. taking out your time and enriching our knowledge. Formal vote of thanks के लिए I would request Pankaj bhai to give the formal vote of thanks. Pankaj bhai, please. बोलिए पंकज जी, बोलिए.
म्यूट अरे वी कैन हियर यू, आप बोलिए सर। पंकज जी हम सुन पा रहे हैं आपको। Sir, we are very much thankful to you for sharing your expert knowledge to us. After so many years of in practice also, so I am making also so many mistakes. After hearing you, I came to know there are so many mistakes we are making. Myself and my colleagues are also making same mistakes, but we are very much thankful to you. Hello. हाँ सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं, बोलिए। We are very much thankful to you, sir. Thank you very much. थैंक यू सर, ऑल माय प्लेजर सर। कमल जी फॉर्मल ज्यादा कुछ हम नहीं करेंगे, बट एक आपकी एड्रेस लेके एक फॉर्मल मूवमेंट हो आपको वहाँ भेजा जाए। मेरा प्लीज सर, मैं एक्सेप्ट आपके दैट। बीच का एक हिस्सा हूँ, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, बस आप समय समय पर याद करता रहिएगा हमें। सर इतना तो बनता ही है हमारी तरफ से। एज यू विश सर, एज यू विश। और हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं जून में फिजिकल सेमिनार ऑन ऑल दीज इश्यूज, सो आई विल बी इन टच विथ यू बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। तो आपको एक बार हमारे यहाँ थाना में आके हमारी हॉस्पिटैलिटी स्वीकारनी होगी। डन सर, डन सर। तो अकॉर्डिंगली आई विल स्पीक टू द एसोसिएशन। पंकज जी करें ना एक फिजिकल, Yes, definitely. बिकॉज जून विल बी द आइडियल टाइम। वो ऑडिट्स वगैरह का जो होता है वो रहेगा, तो इट विल बी बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, तो इट शुड बी आइडियल। वो जी लिस्टेड सर। कंपनीज का टाइम निकल जाएगा तो आइडियल रहेगा सीनियर। एक फुल डे सेमिनार उस हिसाब से करने का प्लान है। सर, अपनी ईमेल एड्रेस भी सर का मुझे तो हमको क्वेरीज रहती है तो हम डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सर क्वेरीज आप वो ग्रुप में डाल सकते हो, हमको डाल दे। ग्रुप तो है ही, वो ग्रुप बंद नहीं होगा। मैंने टेम्पररी इसके लिए ब्लॉक किया था कि कुछ दूसरे एडवर्टाइजमेंट्स आने शुरू हो गए थे प्रोग्राम से, बिकॉज वी वांट टू रिस्ट्रिक्ट दैट ग्रुप ओनली फॉर दिस पर्पस कि मिस हो जाते हैं मैसेजेस। लोग पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कल उनका दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको ओपन कर दूंगा मैं वो। और कमल जी वो मेरे को ये इसका आज का प्रेजेंटेशन शेयर कर लीजिएगा। अभी इमीडिएटली भेज देता हूँ सर। तो द लास्ट वन, एवरीथिंग हैज बीन शेयर्ड ऑन ईमेल विद एवरीबॉडी, हाँ जी, हाँ जी। and if possible you can share your email ID with me also, so करते हैं। अभी आपको इमीडिएटली भेज देता हूँ मैं। ठीक है सर, चलिए और कुछ